वापस आने वाले हैं फ्रेंड्स। नाउ गेट बैक टू पॉइंट्स। फ्रेंड, हम लोगों ने जो टॉपिक आज के प्रोग्राम में रखा है फॉरेंसिक ऑडिट, ये एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। व्हाई आई एम सेइंग यू दिस एज अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, though I will not speak much technical because today we are having our learned faculty, Mr. Narang, with us, who is a faculty of ICI also, who will elaborate on the topic. But though I have myself completed this course under the guidance of Narang sir, and I have also completed my thesis and PhD on this forensic audit. So I've studied in detail and practical, also seen various practical case studies. So I just want to inform you something that these nowadays, not only in राजस्थान बट इन दिस होल कंट्री देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट। हम लोग को कई बार ऐसा लगता है कि केवल शायद कुछ बड़ी कंपनियां ऐसी होगी जिनको फॉरेंसिक ऑडिट का काम मिलेगा। आज तक के लिए शायद ये ठीक था, पर अगर आप आगे देखोगे, राजस्थान गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं तो ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग राजस्थान गवर्नमेंट का बन गया है। हम लोगों ने खुद ने पुलिस को पर्सनल ट्रेनिंग दी, पुलिस डिपार्टमेंट को 2 महीने पहले जयपुर में, राजस्थान में, और बहुत जल्दी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग ट्रेनिंग देने वाले थे, बट कोविड की वजह से सब कुछ अभी रुक गया है। तो व्हाट आई मीन टू से, whether it is police department, economic offense wing, whether it is crime branch of any police department, whether it is ACB, whether it is CBI, whether it is enforcement directorate, whether it is SEBI, whether it is ED, and different agencies, these all agencies required forensic audit for their different case studies, and for to solve their different case, to identify whether there was a fraud, and if yes, then who were the person responsible for those fraud. Right? So in today's session, we will discuss in detail with our learned speaker. In the starting of program, let me introduce and invite Vice Chairman of Jodhpur branch, C. Dhaval Kothari, for his welcome address. Dhaval ji. Dhaval ji, can you hear me, please? Yes, sir. Now am I audible? Yes, Dhaval ji. Good morning, everyone. I, C.A. Dhaval Kothari, on behalf of Jodhpur branch of CIRC of ICI, welcome you on today's webinar. I extend a very warm welcome and greetings to speaker of today's webinar, C.A. Rohit Narang ji, and moderator of this event, Regional Council member C.A. Abhishek Sharma ji. I also welcome managing committee members, all the participants and viewers. Jodhpur branch is trying to give best to its member and students in this pandemic. I, on behalf of the Jodhpur branch, want to give a big thank you to all the members of COVID Task Force of Jodhpur, who is devoting time to help, and those members and students who is involving directly or indirectly to help humanity. In today's webinar, we will know basic of forensic audit. In present scenario, forensic accountants service are used in insolvency cases, bank forensic audits, economic offense wings, SEBI, serious fraud investigation office, etc. In India, professionals have high demand in forensic accounting and auditing services, as they play a crucial role in increasing the reforms of the financial sector. Definitely, we will be benefited from today's webinar. Let's explore new avenues, stay safe and stay healthy. Thank you. Over to you, Abhishek sir. Thank you, Dhaval ji. Thank you for your wonderful welcome address. I also give my big thanks to Shri V.S. Gehlot ji, Chairman Jodhpur branch, and Shri Surendra Runawat ji, Secretary Jodhpur branch, and entire managing committee of Jodhpur branch for organizing this wonderful program. Friends, let me tell you, Jodhpur is a city of Adar Satkar. It's a city of festival. और पूरे वर्ल्ड में जो जोधपुर में जो आपको प्रेम सत्कार आदर मिलता है, वैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ। फिजिकली कोविड पैंडेमिक की वजह से नुकसान ये हुआ है, हम लोग फिजिकल की जगह ऑनलाइन ही प्रोग्राम कर रहे हैं जोधपुर, तो हम लोग जोधपुर की मिठाई और जोधपुर की मिर्ची बड़े का आनंद नहीं ले पा रहे। लेकिन ऑनलाइन करने से फायदा ये हुआ है कि पूरे देश से, हमारे कंट्री से लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे स्पीकर को सुनने के लिए। फ्रेंड्स, जो हमारे आज के स्पीकर है मिस्टर नारंग, इनका मैं बताना चाहूंगा आपको। जो रोहित नारंग जी हैं, ये हमारी FAFD की फैकल्टी हैं, इंस्टीट्यूट का फॉरेंसिक ऑडिट कोर्स की फैकल्टी हैं, और मेरी इनसे मुलाकात भी जब मैं कोर्स कर रहा था तब इनसे हुई थी। और जो पर्सनैलिटी है इनकी, इट्स अमेजिंग, चार्मिंग, वंडरफुल पर्सनैलिटी ही इज हैविंग। ही इज ए वेरी ग्राउंड टू अर्थ, एंड अपार्ट फ्रॉम ए फॉरेंसिक ऑडिटर and a technical specialist in the forensic audit, he is a very good orator and motivator also. आपने एक बुक भी लिखी है स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप हल्का सा बताएंगे भी हमको उसके बारे में। और उसके अलावा आप स्टूडेंट्स को ऑरेट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट में भी आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आज के टाइम में नारंग सर हमको बताएंगे कि फॉरेंसिक ऑडिट का इस प्रोग्राम में फॉरेंसिक ऑडिट का क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट फॉरेंसिक ऑडिट में हो सकती है, उसके अलावा क्या है बेसिक फॉरेंसिक ऑडिट,
नॉर्मल ऑडिट से कैसे अलग है, रेड फ्लैग क्या होता है, रेड फ्लैग को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और कैसे मालूम चले एक बैलेंस शीट को स्टडी करके कि क्या कुछ गड़बड़ है इस बैलेंस शीट में, कुछ फ्रॉड इस बैलेंस शीट में हो सकता है, कुछ विंडो ड्रेसिंग बैलेंस शीट में हो सकती है। और सबसे बड़ी थ्रेड जो फॉरेंसिक ऑडिट में आती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। अगर आपको असाइनमेंट भी मिल गया तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉपरेट नहीं करता। तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो इनडायरेक्ट सोर्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको किस लेवल तक हम लोग रिलाय कर सकते हैं और कैसे उसको यूज करके हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड विल नॉट पुट माय लेग बिटवीन यू एंड द स्पीकर, so I hand over to our wonderful speaker of today's program, Mr. Rohit Naran. Thank you, Rohit sir, for joining with us, and now it's over to you. Thank you. Thank you, Abhishek ji, and all the other members. Good morning, everybody. इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए वैसे। सर आप तारीफ के काबिल हो, इसीलिए आपकी तारीफ। अच्छा, चलो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग, जैसे फॉर्मल पीपीटी से जो चीज बतानी है उससे पहले ना फॉरेंसिक के बारे में थोड़ा सा कुछ मिथ्स वगैरह लोगों के बने होते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट जो है उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल चाहिए होती है। यस, एक लेवल पे जाके हमें वो चीजें चाहिए होती हैं, पर अगर हम लोग उसको बेसिक से शुरू करेंगे तो वो बेसिक से शुरू करने के बाद में हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप अगर उन चीजों को परफॉर्म करते रहेंगे तो हमारे लिए वो सारी पाथ जो है बड़ा आसान हो जाता है। और जस्ट जैसे हम लोगों ने अपना सीए की प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो डे 1 पे जब आप आर्टिकलशिप पे गए थे तो वहां पे जाके आपने देखा था अकाउंट बुक्स कैसे बनती हैं, या अगर सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट कैसे हो रहा है, रिटर्न्स कैसे बनती है। सिमिलरली जब इसी तरह से सेम फोरेंसिक फील्ड में जब हम लोग एंटर करेंगे तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। तो अगर उसको हम लोग स्लोली स्टेडीली स्टेप बाय स्टेप और बेसिक चीजों से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी जल्दी हम लोगों को इस फील्ड के बारे में नॉलेज पता लग जाएगी। कभी कभी मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया, इवन क्लासेस में भी ऐसा होता है, जैसे स्टूडेंट्स जब ये कोर्स भी करते हैं तो कोर्स में क्या होता है, आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, भाई हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात भी करेंगे क्या होता है। तो जब वो सारी बातें सुनते हैं तो उनको लगता है भी ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा मेरे लिए, तो हो सकता है मैं अच्छे से इसको कोप अप ना कर पाए हम लोग, या सारी चीजें ना कर पाए। तो मेरा एक बेसिक सी आज के सेशन में भी हम लोग, मैंने इसको जिसको बोलते हैं ना फोरेंसिक का ओवरव्यू आपको मिल जाए, बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग करते हैं, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आप डेवलप कर लो। फिर उसमें से हम लोग कुछ फील्ड जो है वो पिक करके उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्द अपार्ट फ्रॉम जो हमारा अभी सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है फोरेंसिक ऑडिट का, एक इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारा आईसीआई टाई अप करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिले। एक्चुअल में जैसे अभी उन्होंने मेंशन किया कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी रिक्वायरमेंट होती है एज फोरेंसिक ऑडिट, तो वो अभी इन टॉक्स है, दैट्स इन द प्रिलिमिनरी स्टेज। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोबेबली जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे और एक दो जगह पे और हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जाके प्रैक्टिकली जो केसेस हो रहे हैं उसमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग, कैसे उसकी वो चीजें कर सकते हैं, वो सारा हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी करेंगे। सो इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रहा है, तो होपफुली प्रोबेबली जैसे ये पेंडेमिक खत्म होता है तब तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी, तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो एक बार जब वो खत्म होता है तो फिर वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आज के लिए हम लोग जो बेसिक्स हैं उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी जैसे मैंने एक चीज कंफर्म करी दैट फोरेंसिक ऑडिट, सो मेनी टाइम्स जब भी आप शुरू करते हो फोरेंसिक ऑडिट की पढ़ाई करना भी शुरू करते हो और कोई आपको डिस्क्राइब करना शुरू करता है, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे काम तो मैं इंटरनल ऑडिट में भी कर रहा था, एंड दैट्स ट्रू आल्सो। देयर इज अ वेरी, यू कैन से एक लाइन के बाद में हम लोग बोलेंगे भी ये फोरेंसिक असाइनमेंट बन गई, बट बिफोर दैट कभी कभी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतने डिवोटेड होते हैं अपने काम में, इंटरनल ऑडिट में ही हम कितनी सारी चीजें जो है वो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर बात करें भी हमारा कैसे फोरेंसिक ऑडिट डिफरेंट कैसे है या इसका कैसा रहेगा, उससे पहले एक चीज जैसे अभी अभिषेक जी ने भी बता दी और उन्होंने बताया भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस तो हमें चाहते हैं, इसका क्वांटम अगर हम लोग देखें ऑल ओवर वर्ल्ड क्या रहता है, तो ये ना ये जो डेटा है ये मैंने लिया हुआ है वहां से 2020 रिपोर्ट टू नेशंस होता है, हर साल निकालते हैं, ACFE ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के लिए, उसकी एसोसिएशन है। तो वो लोग हर साल एक रिपोर्ट टू नेशंस देते हैं, वहां पे ये सारी चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था अभी ऑन एन एवरेज 5% रेवेन्यू जो होता है वो फ्रॉड की बलि चढ़ जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन का।
सो दैट इज देयर एस्टिमेट, एंड वो एस्टिमेट जो टोटल है वो बोलते हैं अभी दैट इट विल अमाउंट टू समवेयर अराउंड $4.5 ट्रिलियन. ओके, सो दैट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट. एंड लेट मी टेल यू, आज के डेट में जैसे भी पैंडेमिक है, सो पैंडेमिक के केस में भी फॉरेंसिक की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है. रीजन क्या है? जितना हम लोग ऑनलाइन जाएंगे चीजों की तरफ, जितनी ट्रांजेक्शन हमारी ऑनलाइन होंगी, जितना सारा कुछ उसमें फ्रॉड के जितने चांसेस बढ़ जाते हैं, वो हम लोगों को उतना ही फोरेंसिक की हेल्प से वो सारी चीजों को डिटेक्ट करना पड़ता है. ओके, सो इस पे एक बेसिक सी चीज जैसे हम लोग समझाते थे, आई डोंट थिंक पीपीटी में इसका जिक्र होगा. जैसे आप इमेजिन कर लो, पुराने जमाने में क्या होता था, मूवीज में हम लोग देखते थे, वो क्या करके रहे, अभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, सो मर्डर के लिए जो वेपन यूज होता था, अब वो वेपन क्या होता था, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते थे. इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किस पर्सन के हैं, वो क्रिमिनल को जज करने के लिए वेपन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स कंफर्म करते थे, और जो सस्पेक्ट होते थे उनके सबके फिंगरप्रिंट्स लेके उसको मैच किया जाता था. सो दैट वाज द ट्रेडिशनल वे जो अभी भी चलता है वेपन्स के लिए. वो भी फोरेंसिक लैब वाले पर्सन करते होते थे, पर वो होती थी क्रिमिनल फोरेंसिक्स, और इन सब चीजों के लिए हम लोग चेक करते थे. अगर हम लोग डिजिटल फोरेंसिक्स अपने फील्ड की तरफ बात करें, जहां पे हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे या कुछ भी करेंगे, सो टेक एन एग्जांपल, किसी पर्सन ने आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए, या आपके मोबाइल से आपके ये जो पेटीएम की यूपीआई यूज करके, या तरह तरह की जो यूपीआई आप यूज करते हो, उसको यूज करके आपके कुछ पैसे जो है वहां से निकाल के वो अपने अकाउंट में डाल लिया ना. उसको ट्रेस कैसे करना है? तो डिजिटल फील्ड में, हमारे कंप्यूटर फील्ड में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हमारा आईपी एड्रेस होता है. सो दैट इज द रीजन आप देखोगे भी मोस्टली जितनी हमारी ये इनकम टैक्स रिटर्न्स जा रही हैं या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, धीरे धीरे उन सब में एक फील्ड इनकॉर्पोरेट किया जाता है. जब भी आप वो आपकी रिटर्न प्रिंट होती है तो उसके नीचे एक आईपी एड्रेस प्रिंट होता है. जिस पीसी से, जिस नेटवर्क से हम लोगों ने उसको सबमिट किया होता है, वो नेटवर्क का आईपी एड्रेस जो है वो वहां पे प्रिंट होता है, ताकि कल को अगर कोई पर्सन डिनाई करे भी मैंने तो ये किया नहीं था, सो फ्रॉम दैट आईपी एड्रेस, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेस, वो किस तरह से पता लगेगा, उस आईपी एड्रेस से हम लोग ये आइडेंटिफाई करके प्रूव कर सकते हैं अभी किस पर्सन ने ये वाली चीज जो है वो की हुई थी. अभिषेक जी शायद इस बात को जानते होंगे, हमारे एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अपना इंसिडेंट शेयर किया था हमारे साथ. वो सेंट्रल काउंसिल मेंबर के साथ एक इंसिडेंट किस तरह का हुआ, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से फोन आया और उन्होंने पूछा भी आपके ना यहाँ से 2 रिटर्न्स गई हुई हैं, तो आरओसी की रिटर्न सबमिट हुई थी, तो ये 2 कंपनीज की रिटर्न गई हुई है, पर वो कंपनीज जो है वहां पे उनका ऑफिस बंद है, और देन देयर आर नो वेयर अबाउट द डायरेक्टर एंड एवरीबडी एल्स, हम किसी को ट्रेस नहीं कर पा रहे. नाउ उन्होंने कंपनीज के नाम बताए, तो हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर वो बोलते कहते हैं भी मैंने उसको कंफर्म तो कर दिया, भी आप जैसे नाम बता रहे हो तो मेरे को पता तो है भी मेरे क्लाइंट नहीं है, पर कहता मैंने उनको बोला नहीं, मैंने अपने ऑफिस से डबली श्योर करने के लिए ऑफिस में रिंग किया, अपनी क्लाइंट की लिस्ट को वेरीफाई करवाया, और दोनों कंपनीज जो थी वो उनकी क्लाइंट लिस्ट में थी नहीं. अब जब ईडी वालों के साथ उन्होंने दोबारा बात करी तो उन्होंने बोला भी सर मैंने अपने रिकॉर्ड सारे चेक करवा लिए, ये दोनों मेरे क्लाइंट नहीं है. मतलब ईडी वाले ने उनको क्या बोला, ईडी वाले कहते सर देखो ऐसी बात है, हम लोगों ने आपको ऐसे फोन नहीं लगाया, हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ है, जिस आईपी एड्रेस से ये रिटर्न सबमिट हुई थी वो आईपी एड्रेस आपके ऑफिस का है और आपके ऑफिस से ही यूज किया गया. देन फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में सेंट्रल काउंसिल मेंबर को पता लगा कि उनके ऑफिस के किसी स्टाफ मेंबर ने थोड़ी सी अमाउंट लेके वो रिटर्न्स उनके ऑफिस से अपलोड करी हुई थी. सो दैट इज हाउ बड़ी आसानी से कहां से भी रिटर्न सबमिट करी हो, किसी ने भी कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करी हो, हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं. दिस इज वेरी स्मॉल एग्जांपल सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए भी हमें क्या करना होता है. ठीक है, नाउ स्टेप बाय स्टेप हर चीज के ऊपर मुझे कैसे किन चीजों को प्रूव करना है वो हमारा टास्क रहता है. नाउ फोरेंसिक ऑडिट है क्या? फोरेंसिक ऑडिट इज ऑल अबाउट व्हाट? एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस. जैसे अभी मैंने ये एविडेंस बताया, भी मेरे को पता लगाना है ये रिटर्न किसने सबमिट करी है, मेरे को उसे एग्जामिन करना है, वो आईपी एड्रेस लेके कैसे मैंने उसको बैकलिंक करके कंफर्म करवाना भी आईपी एड्रेस किसका है. देखो क्या होता है, आईपी एड्रेस के लिए हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, जैसे वो कहाँ पे किस एरिया से वो आईपी एड्रेस यूज किया जा रहा है. सो वो नेट पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं. अभी आप क्या करो, भी तरह तरह की साइट्स होती हैं जहाँ पे जाके आप अपनी आईपी लोकेशन, आईपी एड्रेस डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लोकेशन से ये आईपी यूज हो रहा है. जैसे कभी कभी आपको भी आती है ना ईमेल, भी आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है लुधियाना लोकेशन से, अमृतसर, जैसे आई बिलोंग टू अमृतसर लोकेशन से, लुधियाना लोकेशन से. सो बेसिकली दैट वो आईएसपी को ट्रेस कर रहे होते हैं भी कहाँ का आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस दे रहा है, और वो आपके साथ लिंक करके बात बताते हैं.
नाउ फॉर्मली अगर इसको जानना चाहे तो फॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आईएसपी के पास रिकॉर्ड होता है पूरा भी कहाँ पे किस डेट को किस पर्सन ने आईपी एड्रेस जो है वो यूज किया, बिकॉज देयर आर डायनेमिक आईपीज ऑल्सो। आप देखोगे कभी कभी आपके रिटर्न के ऊपर आईपी एड्रेस जो है वो चेंज भी होकर आता है, जो आप अपने ऑफिस से भेज रहे हो वो ऐसा होता है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके हर कनेक्शन के टाइम पे आपको जो भी आईपी एड्रेस नया अलॉट कर सकता है, वो स्लॉट रख के बैठे होते हैं, उन्होंने सब लोगों के लिए आईपी एड्रेस नहीं लेके रखे होते, दैट इज द रीजन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट देयर आर सर्टेन आईएसपीज लाइक जियो, तो जियो के केस में आपका आईपी एड्रेस नहीं चेंज होगा। सो जिन भी लोगों के पास आपका इंटरनेट कनेक्शन जियो का है, जब भी आप वो सबमिट करोगे तो आपका एड्रेस आईपी एड्रेस नहीं चेंज होगा। बट जबकि दूसरे आईएसपी के केस में इट्स वेरी कॉमन, महीने 2 महीने के बाद में कभी कभी वो आईपी एड्रेस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो मेरे को वो एग्जामिन करना है, कैसे उस एविडेंस को कलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है। सो दिस इज द जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है हमारे नॉर्मल ऑडिट से और फोरेंसिक ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। उसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है जब भी मैं कोई एविडेंस कलेक्ट कर लेता हूँ, नॉर्मली हम लोगों के पास एविडेंस के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, वो कैसे है उसके बारे में हमें सारी चीजें मालूम है। बट नाउ जब हम लोगों को इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना है, सो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वहां पे इसकी एडमिसिबिलिटी कैसी है, वो कैसे चलेगा, सो दैट इज द होल गेम, द एंटायर गेम। सेम अगेन द सेम सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल हम लोग लेके बात करते हैं। मैंने कोई किसी पर्सन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू सी दैट कोई भी पर्सन जब भी ये स्टिंग ऑपरेशंस में पकड़ा जाता है, सो द फर्स्ट क्लेम दैट पर्सन मेक्स इज ये वीडियो की फोरेंसिक जांच होगी, इस वीडियो में मैं था ही नहीं। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग जो बोली जाती है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ अ फोरेंसिक ऑडिटर और इवन फोरेंसिक लैब पीपल टू सर्टिफाई एंड वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ दैट वीडियो जो वो कैप्चर की गई है। किस डिवाइस से कैप्चर की थी, किसी ने उसको एडिट तो नहीं किया हुआ, सो दैट इज अ वीडियो। सिमिलरली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं सिस्टम में, किसी ने ट्रांजैक्शन डाली है तो वो ट्रांजैक्शंस कैसे, कभी किसी ने ऑडिट करते समय कुछ मॉडिफाई किया था, मॉडिफिकेशन हुई है ये नहीं हुई है, उसको प्रूव करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जहां से हम लोग क्या करते हैं उसको पक्का बना लेते हैं भी ये मेरा एविडेंस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर हम लोग बात करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, टेक एन एग्जांपल, मेरे को एक फोरेंसिक असाइनमेंट मिली, कोई कंपनी में, बड़ी कंपनी में फ्रॉड हुआ। सो मोस्ट आजकल क्या होता है, प्रोबेबली एवरी वीक कुछ ना कुछ एक बड़ा फ्रॉड हमारे सामने आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में तो आता ही आता है, अब इंडिया में भी ऐसा होना शुरू हो गया, रेगुलरली कोई ना कोई फ्रॉड आने शुरू हो गया। अब होता क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को काम मिलता है आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करिए। उसके केस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस के साथ लोगों ने खेला होता है, जो एडजस्टमेंट्स करी होती हैं, कुछ भी करी होती है, उन सब की ट्रांजैक्शंस को का जो लॉग होता है उसको एनालाइज करके हम लोग क्या करते हैं उसमें से डिटेल्स निकालते हैं, ताकि हमें पता चल सके ये मॉडिफिकेशन किस पर्सन ने करी थी, किस टाइम पे करी थी और किस तरह से करेंगे। अब पर मेरे को उसको संभाल के रखना होता है, क्योंकि वो एविडेंस जब मैं कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा तो जो भी क्राइम करने वाला पर्सन अक्यूज्ड होगा वो डिनाई करेगा भी मेरा जो है ये काम मैंने नहीं किया। सो इट बिकम्स माय ड्यूटी भी वो जो मेरा एविडेंस मैंने कलेक्ट किया वो एडमिसिबल रहे कोर्ट ऑफ लॉ में, तो मैं उसको प्रूव कर पाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज वो जो है वो क्रिमिनल वहां से बच जाएगा। एंड फोरेंसिक ऑडिट के केस में दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू कैन से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भी आपको प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में उस एविडेंस की इंटेग्रिटी को बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सो मेनी टाइम्स जब भी कोई पर्सन नई असाइनमेंट लेता है या कुछ लेता है तो उसको उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करना नहीं आता होता, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ओके, नाउ हम लोग एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ट्रेडिशनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, इट्स कंपल्सरी अंडर सम स्टैच्यू, जैसे हम लोग इनकम टैक्स ऑडिट करते हैं, अभी बैंक ब्रांच ऑडिट करके आए हैं, कहीं ना किसी स्टैच्यू में इसके बारे में एक लिखा होता है अभी हमें ऑडिट करवाना है। सो वी विल डेफिनेटली मेजर कंप्लायंस को रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ हम लोग उसको मेजर करते हैं, एंड हम लोग एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो दिस इज माय ट्रेडिशनल ऑडिट इन वेरी सिंपलिस्टिक मैनर। अगर फोरेंसिक ऑडिट की बात करें, सो दिस इज बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू एन इंसिडेंट। अगर कोई इंसिडेंट होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी भी, किसी पर्सन ने क्या किया, डेटा अपलोड किया, वो कंपनी भाग गई, सो दिस बिकम्स एन इंसिडेंट जहां से एक फोरेंसिक ऑडिट करने की जरूरत है भी ये कंपनी हम लोग ढूंढेंगे तो सही। उसके लिए उनका फर्स्ट क्लू क्या था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने या उन्होंने अपने ऑफिस से रिटर्न सबमिट करी तो उसको ट्रेस करना। फिर उसके बाद में उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहां से आए, उन्होंने कैसे कलेक्ट किया। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज जिससे हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू एन इंसिडेंट।
फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे इसमें सारी के सारे, एंड देन फाइंडिंग्स विल बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। ओके, सो अभी क्या होता है, अभी हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्कैम्स जो हैं बड़े लेवल पे चले हुए थे, जैसे अभी सहारा वाला का स्कैम था। तो सहारा वाला जो स्कैम है उसमें दे आर डिनाइंग विद दैट उन लोगों ने कोई भी गड़बड़ तो कभी करी ही नहीं है। ओके, सो इट्स अ वेरी बिग फ्रॉड। तो वहां पे एक मैसिव टास्क बन जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के, सो दे आर बेसिकली प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल हु हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स, एंड वहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो सारे फेक पीपल है, फोटो किसी की लगी हुई है, डेटा किसी का है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें हो रही है। नाउ उस केस में मेरे को प्रूव करना कि ये पर्सन था ही नहीं। ओके, सो दे हैव टेकन फोटोग्राफ्स फ्रॉम सम डिफरेंट प्लेस, पेस्टेड, एंड कोई भी रिकॉर्ड उसमें जो है वो उनका मन कर रहा था उसमें पंच करके तो वो डिटेल्स बना रहे हैं, बट उसको कैसे प्रूव करना है, उसके रिकॉर्ड कैसे कलेक्ट करने हैं, सो वो सारा फोरेंसिक ऑडिट का जो पार्ट बन जाता है, सो दैट मैं उस फाइनेंशियल फ्रॉड को एस्टेब्लिश कर पाऊं भी इस पर्सन ने फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो किया हुआ है। ओके, Sir, I will take 1 minute. Sorry, हाँ जी, actually we are getting a lot of messages regarding CP hours. So Okay. friends, kindly note that after 12:30 chat box will be open. So after that time, kindly mention your name and membership number for availing CP hours. Thank you very much. Sorry to interrupt, sir. Okay. Kindly continue, please. नहीं, that's okay. Now जो एक चीज हो जाती है अभी, that in smaller cities, छोटे शहरों में हम लोगों के पास ये बड़ी प्रॉब्लम वाली, जैसे अभी शेख जी ने बोला ना, भी हम लोग सोचते हैं बड़ी कॉर्पोरेशन के पास काम है या कुछ ऐसा है। तो सिमिलरली क्या होता है, छोटे शहरों में हम लोगों को लगता है फोरेंसिक का काम नहीं मिलेगा, एंड विच इज लाइक काम मिलता है, बट हम लोग क्या करते हैं उसको इंटरनल ऑडिट के स्कोप में पूरा कर जाते हैं, अनलेस अगर उसको कोर्ट में लेके जाना पड़े तब तक हम लोग उसको क्या करते हैं, वो सारा काम खुद ही करके चले जाते हैं। सो इसके लिए मुझे खुद को एक, जिसको बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे क्रिएट करनी पड़ती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपको इंटरनल ऑडिट जो आपका चल रहा है उसमें से अगर कुछ आपको ऐसी चीज मिल रही है विच यू थिंक इज अ फोरेंसिक असाइनमेंट, देन आपको वो क्या करना पड़ेगा, आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो बतानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी क्लाइंट को भी। दिस इज नॉट रेगुलर इंटरनल ऑडिट, बट येस इट विल बी माय सेपरेट असाइनमेंट विच इज टर्म्ड एज फोरेंसिक ऑडिट। उसके लिए आपको कभी कभी प्रेजेंटेशन बना के क्लाइंट को देनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, कैसा क्लाइंट है, तो उसको एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर बना के देनी पड़ेगी। यस, हम लोगों की इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग में से वी हैव फाउंड समथिंग व्हिच मे लीड टू अ फ्रॉड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और फ्यूचर लॉस को आपको बचाने के लिए हम लोग ये पूरी असाइनमेंट आपके लिए कर सकते हैं। सो आई जस्ट गिव यू वेरी, मतलब मेरी अपनी लाइफ की एक एग्जांपल दे देता हूँ। वन ऑफ माय क्लाइंट्स जहां पे मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा था उनका, सो वी फाउंड आउट वन पर्टिकुलर थिंग। वो क्या हम लोगों ने फाइंड आउट करी, मेरे को एक बिल जो था प्रेजेंट किया गया, वो बिल कोई क्लाइंट लेके आया। सो क्लाइंट को कुछ उसके एड्रेस में, जैसे कस्टमर था, वो कस्टमर को उसको अपने एड्रेस में कुछ चेंजेस करवाने थे। जब वो बिल हमारे पास लेके आया तो बिल की जो अमाउंट थी दैट वाज 1 लाख रुपीज। जो हम लोगों ने सिस्टम में जब उसको चेक किया तो वो उसकी अमाउंट थी 75,000 रुपीज। सो लेके वो आया था अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए। सो देयर वर सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो वो चेंज करने के चक्कर में जब हमने उसको मैच किया तो हमने देखा कि इसमें तो रेवेन्यू का फर्क है। जो क्लाइंट ने हाथ में पकड़ा हुआ है वो 1 लाख रुपए का बिल है, जो हमारे सिस्टम में एंटर हो रहा है वो 75,000 रुपए का बिल है। अब हम लोगों ने देखा भी ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, हमें जो रेवेन्यू का लॉस हुआ वो तो एक बात हुई, कल को उस ऑर्गेनाइजेशन में, इट वाज अ होटल जो जिसका इंटरनल ऑडिट में करा था, और उसमें हमारे पास इंटरनल ऑडिट में जिसको बोलते हैं ना, ये सारी चीजें जो थी उनकी चेक होती थी, रेगुलर जो भी होता था वो सारा काम होता था। एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें ये सामने फाइंडिंग में आई भी ये चीज चल रही है। बैंक्वेट का बिल था। सो बैंक्वेट का बिल उसने पे किया, पर्सन ने पॉकेट में पैसे डाले, 25,000 रुपीज निकाल लिया। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम ये थी, अपार्ट फ्रॉम हमें रेवेन्यू का लॉस हुआ, कल को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे आ सकती है। द रीजन इज दैट अगर उनके पास इस तरह का बिल मिल जाए तो हम लोग अंडर रेवेन्यू को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो देन फिर मैंने क्या किया, फिर दैट वी अज्यूम दैट जो पर्सन, जो मैनेजर वहां पे बैठा हुआ था, वो मैनेजर ये गड़बड़ कर रहा था। सो वो क्या करता था, जैसे जितनी कलेक्शन वो सिस्टम में डालता था एक्चुअल में उससे ज्यादा कलेक्शन करता था, एंड देन वो बाकी के अमाउंट एम्बेजल कर जाता। एट दैट टाइम वैट वाज देयर, सर्विस टैक्स वाज देयर, एंड ऑल ऑफ द लग्जरी टैक्स एक होता था हमारे यहाँ पे, वो लग्जरी टैक्स भी लगता था। तो अलग अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। सो एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। सो देन हम लोगों ने फिर क्लाइंट को समझाया दैट दिस इज वन इंसिडेंट जो हमारे सामने आया है, अगर आप चाहते हो भी हम लोग आपको इसको पूरा चेक करके बताएं, तो हम लोग को एक सेपरेट असाइनमेंट जो है वो उसको फोरेंसिक बोलते हैं, हम लोग वो फोरेंसिक ऑडिट परफॉर्म करके आपको पूरी की पूरी डिटेल निकाल के देंगे,
भी इस पर्सन ने कितने इनवॉइसेस या कितने केसेस में ये सारी चीजें जो है वो करी होंगी। ओके, सो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी हमारी जो प्रोसेस है ना, वैसे यही मैं बता देता हूँ। चलो, आइडिया क्या है, जैसे हमने किया क्या, हमने उसको तरीका क्या था करने का। वंस दैट असाइनमेंट केम टू अस, हम लोगों ने उसका जो लैपटॉप और कंप्यूटर था जो वो मैनेजर यूज कर रहा था, उसके ऊपर हम लोगों ने डिजिटल फोरेंसिक्स परफॉर्म किए। अब डिजिटल फोरेंसिक्स क्या होते हैं, हमारे सिस्टम में नो मैटर अगर आपने फाइल्स डिलीट कर दी हैं, फॉर्मेट कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, हम लोग डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ओके, पर उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया अभी, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़े तो दैट इज माय एविडेंस। जो मेरा एविडेंस है वो क्या है, उसका लैपटॉप या कंप्यूटर है जिसमें से मुझे शक है भी इसने कुछ बिल बना के लोगों को दिया है। इवेंचुअली अगर वो प्रिंट निकाल के ऑफिस पे बैठ के किसी क्लाइंट को बिल दे रहा है, दैट मींस वो बिल बनाता है और उसको डिलीट कर देता है, कुछ ना कुछ करता है। अब हमारे पास वहां पे ईआरपी स्टाइल सिस्टम लगा हुआ था होटल में, तो वो जो सिस्टम लगा हुआ था वो सिस्टम आईडीएस बोलते थे उसको, उसके अंदर बिल बन गया, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो उसकी ट्रांजेक्शन का ट्रेल जो है वो पूरे का पूरा आप लोगों को मिलेगा। अब क्या हुआ, अब जब हम लोगों ने ये सारी चीजें चेक करी तो मैंने उनका लैपटॉप और कंप्यूटर को, हम लोग उसको बोलते हैं अभी चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं, हम लोग उसकी इमेज बनाते हैं, इमेज बना के उस डेटा के ऊपर पूरी की पूरी फोरेंसिक की जाती है। उसके लिए टूल्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी फाइल्स डिलीट की होती हैं उस हार्ड डिस्क पे, रिमूवेबल डिवाइसेस कुछ भी जो हमारे पास उसका मिलता है, उसकी हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और वो फाइल्स को फिर स्कैन करते हैं। दैट वे वी फाउंड आउट दैट दिस पर्सन हैड बीन डूइंग दिस थिंग फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स। और कितनी ज्यादा फाइलें ऐसी थी जो वो क्या करता था, बिल सिस्टम ने निकाल के दिया, उसको आरटीएफ फॉर्मेट में, रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाता था और वो वर्ड में खुल जाती थी। वहां पे जाके उसको मॉडिफाई करता था और मॉडिफाई करके जो था वो बिल, उसको इन्फ्लेटेड अमाउंट का बिल बनाता था। 75,000 का बिल सिस्टम में पंच किया, उसकी वर्ड फाइल बनी, वर्ड फाइल को वो उसने क्या करता था, प्रिंट निकाल के उसको दे दिया और प्रिंट निकालने के बाद में उस फाइल को डिलीट कर देता था। बट ही वॉज नॉट अवेयर दैट अगर हम लोग उसको वेरीफाई करना चाहें तो हम लोग उसको चेक करके उसकी वो सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरी एक लिस्ट निकाल के पकड़ी कि कितने केसेस में उस पर्सन ने जो था वो क्लाइंट्स को इन्फ्लेटेड अमाउंट का बिल दिया था या अंडर वैल्यू बिल जो थे वो सिस्टम में पंच किए हुए थे, बहुत जैसे भी हम लोग उसको ट्रीट करना चाहते हैं। सो ना वो क्लाइंट को ये बात समझानी पड़ी, ये सेपरेट असाइनमेंट है। और उसमें भी एक एस्पेक्ट और होता है। एस्पेक्ट क्या होता है, अगर आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, दैट क्लाइंट साइड भी मुझे कोर्ट में नहीं लेके जाना, मेरे को सिर्फ अपने लिए पता लग जाए, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। दैट वे मुझे एविडेंस को इतना अच्छे से संभाल के नहीं रखना था, बट स्टिल हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस लेनी थी वो हम लोगों ने ली। बट अगर ऐसा हो तो वो फिर सेकेंड स्टेप ये भी हो जाता है, अभी उस एविडेंस को मेरे को हम लोग क्या करते हैं उसमें, देयर इज समथिंग कॉल्ड हैश वैल्यू। ओके, सो हैश वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज एक्चुअली कैलकुलेटेड। तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग एक आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, अभी कोई भी जो फोरेंसिक ऑडिटर होता है उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल ऑडिटर कोई भी हमारे होते हैं, तो वो ऑडिटर की जो ट्रेड्स होते हैं वो वैसे ही फोरेंसिक ऑडिटर के ट्रेड्स भी वैसे ही होते हैं। अब ये कैसा, हम लोग इसकी बात करेंगे, एक से हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, वो होता है, मतलब वी हैव दैट, तो पूरा जिसको बोलते हैं कूट कूट के भरा होता है हम लोगों के बीच में। सो व्हेनेवर यू सी ए ट्रांजैक्शन, तो हम लोग उस ट्रांजैक्शन को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हम लोगों को वो चीज जो है वो चेक करके रखनी चाहिए। जैसे टेक एन एग्जांपल, किसी पर्सन ने I've got so many different examples from the field, similar field also, and जैसे भी होटल इंडस्ट्री में एक बार ऐसा हुआ था विद इनवॉइस की ऊपर जो आपका गेस्ट चेक इन कर रहा है उसका और उसका हम लोगों ने लिंक बनाया, जो उसकी पेमेंट हो रही है क्रेडिट कार्ड की, अगर उसके नाम में डिफरेंस है तो दैट कैन बी पॉसिबल। हस्बैंड आया तो वाइफ आई तो हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट देर इज वेरी बिग डिफरेंस। जैसे देर इज वी हैड नेम कॉल्ड मिस्टर मूर्ति। ओके, सो मिस्टर मूर्ति के नाम पे बिल बन रहा है और जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहा है वो हो रहा है थॉमस के नाम पे, बॉब थॉमस ना। बॉब थॉमस कैन बी अ नेम जो हमारे यहाँ का होगा, बट स्टिल स्केप्टिसिज्म है, उसको चेक करें। जब हम लोगों ने उसको वेरीफाई करवाया तो वो क्रेडिट कार्ड जो था वो फॉरेन के किसी रेजिडेंट का था, और जो पर्सन स्टे करके गया था गेस्ट हमारे पास, वो पर्सन स्टे करके गया था वो हमारे पास साउथ का था। सो दिस विल बी टर्म्ड एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा उसको तरीके से एनालाइज करके देख रहे हो चीजों को, एंड देन यू फाइंड आउट समथिंग जो कोई ना कोई आपको लीड कर जाता है वे जो। ओके,
सो देन बी ए गुड ऑब्जर्वर, सो दैट वी ऑल आर। अभी जैसे इसके लिए क्लास में तो मैं क्या करवाता हूँ, कुछ एक्टिविटीज वगैरह करवा देता हूँ। अभी हमारे पास आज टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए एक्टिविटीज तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। पर यस, हम लोग क्या करेंगे, व्हेनेवर वी सी ए डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट में जैसे ही वो सीएस को हम लोग वो डॉक्यूमेंट पकड़ाते हैं, सो दे विल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट, इसमें 10-15 जो डिस्क्रिपेंसीज है वो हमें मिल जाए। सो दैट इज आवर गिफ्ट, जो सीएस के लिए ये फील्ड बड़ा एप्ट बन जाता है। हमें ऑब्जर्वर बड़ा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कोई सा भी डॉक्यूमेंट, कोई सी भी स्टेटमेंट जब भी हमें वो दी जाती है, तो उन स्टेटमेंट्स और इन सब चीजों में हमारे पास जो है वो डिफरेंस हमेशा नजर आता रहता है। ओके जी, सो दैट इज माय ट्रेड। देन we'll be using multiple clues। अभी ये क्या होता है, आपके पास देयर इज वन क्लू जो हम लोग कोई पकड़ते हैं, हम लोग उसको लेके चलना शुरू कर दें, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे को मल्टीपल क्लूज लेके चल रहे हैं, तो होगा क्या, इंस्टेड ऑफ एक चीज के ऊपर फोकस करने के बजाय हम लोग मल्टीपल चीजों को ध्यान में अलग अलग तरीके से रखें। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पीपल हैव द टेंडेंसी टू लीड मी समवेयर। किसी को पता चल गया भी ये पर्सन जो है वो फ्रॉड चेक करने की तरफ चल रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ना, वो बैंक्वेट के बिल की एग्जांपल मैंने दी। अब वहां पे क्या था, उसको पता चल गया, रिसेप्शन वाले ने बताया भी ऐसे कोई कस्टमर आया था, आपने ऊपर भेजा था उसको, अब वो डर भी लग रहा है कि मेरा बिल पकड़ा जाएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दैट पर्सन इज क्रिएटिंग स्टोरीज। स्टोरीज क्या, ओ सर ऐसा हुआ था, अब इस पर्सन के ना पहले इनका इनवॉइस ज्यादा बना हुआ था, उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया था, बोला भी नहीं नहीं हमारे तो मेंबर्स कम आए थे, तो नंबर ऑफ प्लेट्स जब हमने काउंटिंग करी तो नंबर ऑफ प्लेट्स कम थी। एंड नाउ दैट ही द पर्सन इज एक्चुअली ड्राइविंग मी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो मुझे बोल रहे हैं भी आप क्या करो, इस तरफ इसको देखो, तो होगा क्या, सो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें क्लूज देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, क्योंकि जो बिल बना और जो पर्सन लेके आया, अब वो पर्सन क्यों एड्रेस चेंज करवाने के लिए लेके आया, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल जो था, वो कॉर्पोरेट जो थी वो पार्टी थी, और उन लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर क्लेम करना है, और प्रोबेबली दे आर क्लेमिंग द इनपुट क्रेडिट आल्सो फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। सो दैट मींस अगर अमाउंट में डिफरेंस होगा, तो वो उनके रिकॉर्ड्स में जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। सो दैट इज अनदर क्लू जो मैं ले सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू डिफरेंस। सो मेरा सेकंड क्लू क्या है, बिकॉज दिस इज अ कॉर्पोरेट पर्सन, सो कॉर्पोरेट वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, सो उसको बड़ा पिक्यूलियर होगा भी मेरा बिल जो है वो गलत ना है, बिकॉज अदरवाइज ही वाज ट्राइंग टू लीड मी। ये जो पर्सन है, इन्होंने तो बिल ही गलत लेके आए हुए हैं, इनके पास एक्चुअल बिल 75,000 का हो सकता है, वो सेटल करने की कोशिश करता उसके साथ या कुछ भी करता, बट हम लोगों को एज फॉरेंसिक ऑडिटर इन सब चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। ओके जी, something ओके। नाउ हम लोग इसकी प्रोसेस समझते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या रहती है। सो देखो क्या होता है, मैंने शुरू से बोला था ना, कोई सी भी बेसिक चीज को अंडरस्टैंड करके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए बेसिक क्या चीज है, सबसे पहली इनिशियलाइजेशन होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, इनिशियलाइजेशन क्या थी, हम लोगों ने फाइंड आउट किया एक बिल डिफरेंस था, तो उसको हम लोग चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए विल इनिशिएट दैट फोरेंसिक ऑडिट। सो देयर विल बी सम इंसिडेंट जो मुझे लेके जाएगा, मैं अपनी प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद में फिर मेरे को प्लान डेवलप करना पड़ेगा। अब प्लान डेवलप करते समय मुझे पूरी एनवायरनमेंट देखनी पड़ती है, केस टू केस मुझे अलग अलग चीजें जो है वो उसको स्टडी करनी पड़ती है। वो क्या होंगी अलग अलग चीजें, हम लोग अगर बात करें तो किस तरह की केसेस हमारे पास हो सकती है। जैसे यहाँ पे मेरा प्लान क्या था, दैट हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सो देयर विल बी अ प्रोसेस दैट उसका सिस्टम हम लोग किसी टाइम पे उसकी हार्ड डिस्क की इमेज उठाएंगे, सो दैट द पर्सन डजंट नो भी हम लोग उसकी चेकिंग जो है वो उसकी हार्ड डिस्क की कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। तो हम लोग इवनिंग टाइम में जब वो चले जाएंगे सब लोग, सो एक सीक्रेटिव तरीके से उसकी हार्ड डिस्क की इमेज लेंगे, वो अपना नॉर्मल काम करता रहे और पुरानी की पुरानी चीजें जो है वो करते रहेंगे। और प्लान में मुझे ये मेंशन करना है अभी मैं क्या क्या चीजें कर पाऊंगा। ओके, सो देयर विल बी अ प्लान दैट मुझे डिजिटल फोरेंसिक्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, देयर माइट बी अ प्लान मुझे उसकी इंटरव्यू भी करनी पड़ेगी किसी पॉइंट पे जाके। सो दैट इज ड्यूरिंग द प्लान मुझे डिसाइड करना पड़ता है मुझे कौन कौन सी चीजें लेनी है। अगर मैं डिजिटल फोरेंसिक परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे कौन से एविडेंस मिलेंगे, और अगर मुझे वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन एविडेंसेस को फर्दर कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, इंटरव्यू करके उससे कुछ चीजें कन्फेस भी करवानी पड़ेंगी। सो दैट शुड बी, मेरे को प्लान जब डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे पता लगना चाहिए मैं कौन कौन सी चीजें जो है वो कर सकता हूँ। ओके, बेसिकली तेरा अगर इसकी मैं बात करूँ तो हम लोग क्या क्या काम करते हैं, हम लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा जो नेक्स्ट रहता है ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस, यहाँ पे हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है
मैंने उसकी हार्ड डिस्क की इमेज लेके उसमें से डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकालने हैं। तो मुझे एविडेंस मेरे लिए क्या है, वो एविडेंस है उसकी हार्ड डिस्क, उसको मेरे को पकड़ना है, पकड़ने के बाद में उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो वो क्या होता है, मेरे को एनालिसिस करना पड़ता है, डेटा का एनालिसिस। सो वंस वी आर डन विद इट, सो विल रिकवर ऑल द फाइल्स। आफ्टर रिकवरी ऑफ ऑल द फाइल्स हम लोग क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अभी कितने बिल्स डिलीट हुए, कितने परसेंट हो सकता है, कुछ बिल्स हमें मिले, कुछ नहीं मिले, क्या वो जो जिस क्लू से हमें पता लगा था ये प्रॉब्लम है, क्या वो हमारे पास इसमें है, अगर नहीं है तो दैट मीन्स देयर विल बी फाइल्स जो ये किसी दूसरे सिस्टम में जाके बना रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे प्रॉपर एनालिसिस जो है उसका वो करके चलना पड़ता है। उसके बाद में मुझे उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि मेरे लिए क्या क्या हुआ, एंड देन फाइनली फिर मैं क्या करता हूँ, कोर्ट के लिए प्रोसीड करता हूँ, अगर मेरे को वहां पे लेके जाना है इसको। अब यहाँ पे 2-4 कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, वो क्या रहते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास रहता है जो मैंने बताया था, एविडेंस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना। सो नाउ इस प्रोसेस को हम लोग एक और एग्जांपल के साथ लिंक करके समझते हैं क्या रहेगा। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कहीं से टिप मिली। नाउ माइंड यू, टिप्स जो होती हैं, कंप्लेंट्स जो होती हैं, दोज आर द नंबर 1 सोर्स जब जहां से फ्रॉड डिटेक्ट होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को टिप मिली दैट दिस पर्सन एक्चुअल में उसकी सेल 100 करोड़ रुपए की है, पर बुक्स में वो जो है वो नॉट इवन 20 करोड़ रुपए की सेल भी नहीं चेक करवाता। ओके, या उन लोगों ने अपने एनालिसिस किया था, कुछ उन्होंने इंस्पेक्टर भेजे थे जो डेली की जो है वो सेल उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते महीना भर कैलकुलेट करी, और उनको पता लगा भी कितना कस्टमर चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, क्या इनका रेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो पूरा करने के बाद में उनको एक टिप मिली भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। सो दैट इज द इनिशियलाइजेशन फेज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे रेड करी, रेड करने के बाद में वहां से उनकी हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सारी, और कंप्यूटर जो थी वो फ्रीज करके वो अपने सीज करके अपने पास ले गए। लेके जाने के बाद में अब मेरा प्लान है उन चीजों को एनालाइज करवाना। ओके, अब होगा क्या, जब वो कंप्यूटर मेरे पास आए, मैंने उसको उस पर एनालिसिस किया, वी फाउंड आउट दैट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस कर रहे थे। जैसे अभी हमारा पीछे लास्ट ईयर एक मॉडिफिकेशन आई ना, दैट वी कैन नॉट यूज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन केस ऑफ कंपनी, जहां पे एडिट और मॉडिफाई की ऑप्शन जो है, और वो उसकी ट्रेल नहीं रख रहा, डिटेल नहीं, ऑडिट ट्रेल नहीं मेंटेन करा भी, किसने उसको मॉडिफाई किया, किसने उसको डिलीट किया। वो डेफर हो गई, चलो वो बात अलग हो गई। पर अगर सिमिलर वे में मैंने वो सारी ट्रांजेक्शन निकाल ली, अब होगा क्या, जब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट में जाके दैट पर्सन विल से दैट सर वी हैव नॉट एक्चुअली डन दीज थिंग्स, ये तो हमारी ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन ये बता रहे हैं, ये तो हो सकता है इन लोगों ने, मेरे तो कंप्यूटर ले गए थे ये लोग, हो सकता है इन लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन करी हो। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं किस तरह से उसको बचूंगा, मेरे लिए उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको प्रूव करना, वो मैं किस तरह से प्रूव करूंगा। डिजिटल जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, उनके केस में इंटेग्रिटी को प्रूव करने के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म में से एक जो है वो बड़ी नॉर्मल सी चीज होती है, वो होती है हम लोगों को उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज द हैश वैल्यू, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हैश वैल्यू का मतलब ये होता है, आप अगर अपने लैपटॉप पे एक छोटी सी फाइल बनाओ, अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, उसके ऊपर उसका नाम दे दो फोरेंसिक ओवरव्यू ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, सिर्फ ये नाम देके उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख लो, आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो, फैकल्टी नेम रोहित नारंग, एंड फिर उसके बाद में डिटेल्स जो है वो बतानी शुरू कर देते हो। जब आप वो सारी डिटेल लिखनी शुरू करोगे तो वो क्या करता है, सिस्टम उस टेक्स्ट फाइल की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करता है। ओके, वो हेक्साडेसिमल वैल्यू यूनिक रहती है डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट उसके अंदर कितना है। अगर मैं दोबारा उस फाइल को खोलता हूँ और उसमें से एक जो जिसको बोलते हैं ना, कोई भी अल्फाबेट डिलीट कर देता हूँ, एक अल्फाबेट इंसर्ट कर देता हूँ, इवन अ स्लाइड चेंज, चाहे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कोई अल्फाबेट, आई एम नॉट टॉकिंग इवन अबाउट अ फुल वर्ड, इवन एक सिंगल अल्फाबेट भी चेंज करोगे, वो हेक्साडेसिमल वैल्यू जो उस फाइल की है वो फिर चेंज हो जाएगी। सो वो कॉरस्पेंडिंग वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप लोगों को बात करें, सो द मोमेंट यू आर अपलोडिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन द वेबसाइट, तो वहां पे क्या होता है, जब आप अपलोड करने से पहले एक्सएमएल फाइल इज एडिटेबल, आप उसको राइट क्लिक करके नोटपैड में खोल सकते हो। टेक एन एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल मैं बोलता होता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या किया, कोई भी पर्सन की, जैसे फर्म का नाम है ग्रोवर सन्स, ओके, तो जनरली क्या होता है, एस जो है वो पीछे लगा रहता है, सन्स प्लूरल में बोलते हैं। अब हुआ क्या, रिटर्न पूरी बन गई, सब कुछ हो गया, मुझे पता लगा यार ये मेरा क्लाइंट का ना नाम यूनिक है, इट्स नॉट ग्रोवर सन्स, इट्स ग्रोवर सन, SON, सिर्फ एक एस हटाना है। मैं सोचता हूँ सारी XML फाइल बन गई है, मैंने डिजिटली साइन कर दिया है, मेरे को अपलोड करनी थी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको राइट क्लिक करता हूँ, XML को एडिट करता हूँ नोटपैड में, और सन्स में से एस डिलीट कर देता हूँ, उसके नाम में से ग्रोवर सन लिख देता हूँ।
नाउ दैट इज अ सिंगल अल्फाबेट चेंज। वो चेंज करने के बाद में मैं फाइल सेव करता हूँ और अपलोड करता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। द मोमेंट यू ट्राई टू अपलोड दैट फाइल ऑन पोर्टल, इट सेज that please sign, it's not a valid XML file, please sign the file again, something like this, एक मैसेज आएगा। वो कैसे होता है? एट द टाइम ऑफ साइनिंग दैट फाइल वो इसकी एक हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है, और जीएसटी के ऑडिट में आप लोगों ने चेक भी किया होगा, वो हैश वैल्यू आप पंच भी करते हो, उसकी वैल्यू सामने नजर भी आती है आपको। जब मैं उसको साइन करता हूं तो वो क्या करता है, जितना भी कंटेंट होता है उस एक्सएमएल फाइल के अंदर, उसकी वैल्यू कंसीडर करते हुए एक एल्गोरिदम लगाता है। नाउ एल्गोरिदम इज बेसिकली अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला लगा के एक जिसको बोलते हैं ना अल्फा न्यूमेरिक नंबर, प्रोबेबली 16 डिजिट्स का और 24 डिजिट्स का, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, वो एक यूनिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। सो दैट विल बी टर्म्ड एज माय हैश वैल्यू। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ, अगर उसको समझना हो उस कॉन्सेप्ट को। और वो हैश वैल्यू क्या होती है, हम लोग पूरे जैसे एक सिंगल फाइल की कैलकुलेट करिए, पूरी हार्ड डिस्क के कंटेंट की भी हम लोग हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस जब भी सीजर होता है हार्ड डिस्क का, तो उस टाइम पे एक फॉर्म होता है, वो हम लोग उसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन करवाते हैं, किस डेट को लिया, कौन से पर्सन से हम लोगों ने लिया, हार्ड डिस्क की मेक क्या थी, जैसे हम लोगों के पास अलग अलग होते हैं ना, वेस्टर्न की है, सीगेट की है, अलग अलग हार्ड डिस्क की मेक क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी। देन वी हैव हैश एल्गोरिथम्स जो मैं कैलकुलेट करने के लिए यूज करता हूँ। सो वी हैव डिफरेंट हैश एल्गोरिथम्स। इंडियन कोड्स में अभी भी MD5 हैश एल्गोरिथम एडमिसिबल है, वो यूज होती है। देन वी हैव अ सिक्योर हैश एल्गोरिथम SHA-1, वो भी यूज होती है। सो दीज आर द टू कॉमन हैश एल्गोरिथम्स जो इंडियन कोड्स में हम लोग यूज करते हैं। दो MD5 is a broken hash now, but still it is used in India. Okay, काफी जगह भी यूज होती है, rather not in just in India. So वो MD5 या SHA-1 हम लोगों ने एल्गोरिथम कैलकुलेट करके पूरी हार्ड डिस्क की एक ऐसी यूनिक वैल्यू, हैश वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और वो फॉर्म में मैं मेंशन करता हूँ एट द टाइम ऑफ सीजर इस हार्ड डिस्क की हैश वैल्यू बाय यूजिंग MD5 एल्गोरिथम ये निकल रही है। और नीचे उस क्लाइंट के साइन करवाता हूं भी आपकी प्रेजेंस में हम लोगों ने हैश वैल्यू कैलकुलेट करी थी और इसकी हैश वैल्यू यही है, एंड देन वो साइन होती है। साइन होने के बाद में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, कल को अगर वो क्या करे, वो इस चीज को वो करते हैं डिनाई करे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके भी दैट इन लोगों ने डेटा चेंज किया था। सो देन व्हाट वी विल डू, we will recalculate the hash value of that hard disk or whatever the device, removable device कोई भी हमारे पास हो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके उसको वेरीफाई करवाते हैं। अगर वो हैश वैल्यू सेम रहेगी जो साइन करते हुए हम लोगों ने फॉर्म लिया था और जो हम लोगों ने उस समय दोबारा कैलकुलेट करी, सो दैट विल डिटरमिन दैट उसके डेटा के साथ किसी ने भी पंगा नहीं लिया हुआ, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं हुए, नॉट इवन अ सिंगल अल्फाबेट। बिकॉज मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया ना, अगर आप एक सिंगल अल्फाबेट भी चेंज करोगे तो उसकी हैश वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो चाहे वो ट्रांसपोज कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दैट वे ये हैश एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो एविडेंस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके दिखाने के लिए हमें काम है। सो नाउ दैट इज द प्रोसेस। वो फिर मैं उसको चेक करता हूँ, उसमें से फोरेंसिक्स, अब उसका डेटा एनालिसिस करना है, ट्रांजेक्शंस का लॉग चेक करना है। और ट्रांजेक्शन के बारे में एक चीज और समझाता हूँ, जब हम लोग ट्रांजेक्शन रेफर करते हैं, जनरली हमारे माइंड में एक चीज आती है, जैसे हमने एंट्री डाल रहे हैं, कोई इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलेंगे। बट ट्रांजेक्शन जो टर्म होती है डेटाबेस में हम लोग इसको यूज करते हैं, अगर किसी ने सर्च भी किया किसी चीज को तो भी वो एक ट्रांजेक्शन हो जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। टेक एन एग्जांपल, आप क्या करोगे, व्हेनेवर यू गो टू दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, लाइक आप ट्विटर पे गए और ट्विटर पे जाके यू सर्च फॉर हैशटैग कोरोना या कोविड-19 2021 समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके आपने कुछ जो था वो सर्च किया। नाउ उनके डेटाबेस में एक एंट्री स्टोर हो जाएगी दैट रोहित नारंग सर्च हैशटैग कोरोना वायरस ऑन 16th of May and this particular time probably around 12 noon, जो भी टाइम होगा डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ वो मेंशन हो जाएगी। अब वो ट्रांजैक्शन हमेशा रिकॉर्डेड रहती हैं, किसने मॉडिफाई किया, किसने डिलीट किया, कब चेक किया, तो वो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इवन अगर सर्च कर रहा हूँ तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, अगर मैं मॉडिफाई करूंगा वो भी एक ट्रांजैक्शन है, डिलीट करूंगा वो भी एक ट्रांजैक्शन। तो दीज आर द ट्रांजैक्शन। तो वो ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर लॉग जो है वो मेंटेन किया होता है डेटाबेस में। ओके जी, देन वी विल डू ऑल द एनालिसिस, वहां से फिर रिपोर्ट बनाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट के लिए अगर हमें देने की जरूरत होगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको कोर्ट में भी प्रेजेंट करवा सकते हैं। ओके जी, नाउ
नाउ देयर आर सम वेरी सिंपल फोरेंसिक टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग करते हैं, सो दे आर नॉट टेक्निकल एट ऑल. सो इस तरह के टेस्ट जो है वो आप खुद भी करते होते हो काफी ज्यादा केसेस में. तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे जक्स्टापोजिशन टेस्ट है. नाउ व्हाट इज दिस जक्स्टापोजिशन टेस्ट? हम लोग क्या करते हैं, जब भी दो डॉक्यूमेंट्स को सामने सामने रख के कंपेयर करते हैं तो हम लोग उसको जक्स्टापोजिशन टेस्ट बोल देते हैं. ओके, इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज होती है. आपको अगर कोरिलेट करना हो तो जैसे न्यूज़पेपर में आता था ना, स्पॉट द डिफरेंसेस. ये कब फायदे में आता है, कैसे कब हमें फायदा मिलता है? अगर किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, कुछ भी चेंज किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों चीजों को सामने रखेंगे और उसमें से वो डिफरेंसेस स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल lead me to something very substantial. और this does not happen just only with documents. Juxtaposition test जो है वो हम लोग ऑडियो के साथ भी कर सकते हैं, वीडियो के साथ भी कर सकते हैं. ऑडियो के एग्जांपल अभिषेक जी से हमने कंफर्म किया था. अभिषेक जी ने थीसिस जो करी थी वो इन्होंने शायद NSEL पे करी थी. तो NSEL की एक जो है वो है कॉमन एग्जांपल जो है वो ये होती है, वहां पे जो ट्रेड्स एंटर किए गए थे सिक्योरिटी एक्सचेंज पे, तो वो जो ट्रेड एंटर किए गए थे वो सारे के सारे ट्रेड जो थे वो उसमें से फेक ट्रेड्स भी थे. अब वहां पे फोरेंसिक ऑडिटर जो थे उन्होंने इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए भी ये फेक है, सो दे यूज दिस जस्टापोजिशन टेक्निक. और उसमें एक बड़ी जिसको बोलते हैं ना, दैट वाज वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ थिंग आल्सो जो वहां पे यूज की गई थी. वो क्या थी, उन लोगों ने क्या किया, जब कॉल को एनालाइज किया तो कॉल्स में क्लाइंट जो है वो बोल रहे थे भी हमारी इतनी कमोडिटीज बाय कर लो, इतनी सेल कर लो, वो सारे ट्रेड्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन थी. व्हेन दे वेरीफाइड विद द ट्रांजैक्शन वो सब मैच कर रही थी. अगर फोन पे किसी क्लाइंट ने बोला है हम लोगों को एक लॉट उठाना है तो एक ही लॉट परचेज हुआ है, एक लॉट बेचना है तो एक ही लॉट बिका हुआ है. दे ट्राइड एवरीथिंग, डेटा में कोई पंगा नहीं मिल रहा था. बट देन दे स्पॉटेड वन वेरी ह्यूज डिफरेंस. द डिफरेंस वाज जितने भी ऑर्डर एक तरह के थे, उन ऑर्डर्स में देयर वर नो ग्रीटिंग्स. दैट मींस जैसे हम लोग आप राजस्थान में प्रॉब्ली मैं वैसे रुक के भी आया हूँ थोड़ी देर के लिए जयपुर में, तो जैसे आप किसी को मिलते हो राम राम साहब, आप फोन पे लगा के बोलोगे क्या हाल है, या इन योर रीजनल लैंग्वेज यू विल ट्राई टू से समथिंग लाइक दिस. सो वी इंडियंस हैव दिस नैक ऑफ एक्चुअली सेइंग समथिंग. जैसे हम लोग पंजाबी कल्चर में तो हमारे बहुत क्या होता है, बड़ी वार्मथ से तरीके से हम लोग उसको ना सामने वाले को बोलेंगे हाँ जी पाजी क्या हाल है, ठीक हो, एंड वी विल एक्चुअली ग्रीट देम, एंड देन विल कम टू द पॉइंट, ओके 2 लॉट खरीद लो मेरे. ओके, so now this is the normal thing, but they observed that in all of the calls there were no greetings at all. Not even a single call had a greeting. Why so? Because they used a particular kind of software to join it. जैसे उन्होंने क्या किया, आप लोगों को अगर ध्यान में हो, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, द अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड. वो अनाउंसमेंट कैसी होती है, अनाउंसमेंट ऐसी होती है, गाड़ी संख्या 29504 गोल्डन टेम्पल मेल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है. सुना, जो पॉज होता है वो पॉज इसलिए होता है बिकॉज दे आर एक्चुअली कंबाइनिंग द ऑडियो, मल्टीपल ऑडियो को कंबाइन कर रहे हैं. वहां पे जो पर्सन बैठा हुआ है ऑपरेटर, वो क्या करता है, मेंशन करता है भी कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी. द मोमेंट उसने वो एंटर किया तो गाड़ी संख्या उस वॉइस में अलग अलग तरह से रिकॉर्ड हुई. जैसे 2 को उन्होंने 2 9 5 0 4 कुछ भी जो वो बोलेंगे गाड़ी के नाम, उन्होंने वो अलग से रिकॉर्ड किया होता है. द मोमेंट ये पंच इन दैट इन्फॉर्मेशन, वो सब ज्वाइन होके आपको एक ऑडियो क्लिप की तरह सुनाई देता है, बट स्टिल देयर आर पॉजेस. तो सेम टेक्निक उन्होंने यूज करी थी यहाँ पे भी. जो अलग अलग नंबर्स थे, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट, ऐसे करके उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पंच करी, रिकॉर्ड की वॉइस, और बाद में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जिसने क्या किया, सारी चीजों को मैच करके वॉइस बनाई, और वो वॉइस फाइल सबके साथ अटैच की गई. दीज आर द वॉइस फाइल फॉर सौदा नंबर इतना, सौदा नंबर इतना, वो सब चीजों को उसके साथ लिंक कर दिया. एंड नाउ दैट इज, आपने एक नॉर्मल कॉल को कंपेयर किया जो ये फेक कॉल थी, एंड देन यू केम टू नो अबाउट दिस. एंड देन सिमिलरली वी हैव दिस वीडियो के बारे में भी होता है. सो वीडियो के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन गिव यू सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो इन वीडियो केस आल्सो, बट आई थिंक सो फिर ज्यादा हो जाएगा. बट वीडियो के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में, अगर इफ देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन 2 वीडियोस, जहां से मैं स्पॉट कर सकता हूँ यस दिस कैन बी अ फेक वीडियो और इसमें कुछ गड़बड़ वाली बात है, सो देन व्हाट विल हैपन, वो मुझे हेल्प करती है इस तरह के फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में. सो दीज आर माय जक्स्टापोजिशन टेस्ट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जक्स्टापोजिशन टेस्ट. नाउ वी हैव दिस टेस्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी.
Now there are certain transactions which are not possible. Take an example. हम क्या बोले, अगर मैं किसी का सेल्स की एनालिसिस कर रहा हूँ और इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है, उसमें से मैं स्पॉट करता हूँ देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कमिटेड अराउंड आफ्टर 11 p.m. Now this store closes at 8 p.m. Now how come we can have sales at 11 p.m.? So now that is something impossible because store close हो गया, there were no after hours, कोई किसी ने extend नहीं की टाइम, कुछ भी नहीं हुआ, but it happened. सेल्स जो थी वहां पे मेंशन की गई, ओके, सो वहां पे सेल्स आ रही है रात को 11 बजे, इंस्टेड ऑफ 8 बजे हमारा स्टोर बंद हो गया और 11 बजे रात को सेल हो रही है, कस्टमर वॉक इन हो रहे हैं और सेल। जबकि टेक एन एग्जांपल, अगर वो मेरी मॉल में शॉप थी तो मॉल रात को वो बंद ही कर देते हैं 9 बजे, 8 बजे शॉप्स बंद होती है, 9 बजे मॉल बंद हो जाता है और 9 बजे के बाद में मॉल में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद में 11 बजे कस्टमर आ रहा है, कस्टमर को हम लोग कोई चीज बेच रहे हैं और सेल वहां पे डली हुई है, नाउ दिस बिकम्स एन इम्पॉसिबल थिंग। सिमिलरली सो देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक बैंक में या किसी इस तरह की इंस्टीट्यूशन में जहां पे ऑफिशियल हॉलिडे, एवरीथिंग इज क्लोज्ड और वो पर्सन की प्रेजेंट एब्सेंट मार्क होती है, वो पर्सन एब्सेंट है उस दिन और वहां पे उसकी एब्सेंट मार्क होने के बावजूद ट्रांजैक्शंस आर देयर इन द सिस्टम उसके लॉगिन से। सो नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज, बट स्टिल अगर आप लोग लॉजिकल सिनेरियो देखें भी दैट ही इज नॉट शेयरिंग द पासवर्ड एंड एवरीथिंग, उसका बायोमेट्रिक लगा हुआ है, तो अब उसके बाद में वो उसकी ट्रांजैक्शन डालना, या तो वो एब्सेंट नहीं है तो या फिर वो ट्रांजैक्शन उसके लॉगिन से नहीं हो सकती, सो दैट बिकम्स माय टेस्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। नाउ वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट जो हमें ऐसी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प करता है, वो होता है टेस्ट ऑफ अब्सर्डिटी। ना अब्सर्डिटी और इम्पॉसिबिलिटी में बिल्कुल थिन लाइन डिफरेंस होता है। थिन लाइन डिफरेंस कैसा होता है? इम्पॉसिबल इज लाइक मैं अमृतसर में हूँ एंड मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी जैसे अराउंड 12 बजे होंगे तो 12 नून को मैंने चेकआउट किया या वहां से आउट लिया, और जयपुर में या जोधपुर में मेरा लॉगिन जो है आफ्टर 2 आवर्स हो गया। नाउ देयर आर नो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो अमृतसर से जोधपुर जाएंगी एंड वाया फ्लाइट्स जो हैं वो इट विल टेक मोर देन 4 आवर्स, सो इट इज लाइक इम्पॉसिबल कि मैं इतनी देर में वहां पे नहीं जा सकता। बट एट द सेम टाइम टेक एन एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है मैंने यहाँ से 12 बजे आउट किया और जयपुर की डायरेक्ट फ्लाइट हमारे यहाँ पे चलती है कभी कभी किसी दिन, तो अगर मैं जयपुर में आफ्टर 2 आवर्स जयपुर में उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको लॉग इन कर रहा हूँ, सो दैट बिकम्स अबसर्ड। इतना फटाफट से सारी चीजें कैसी कंप्लीट हो गई और पर्सन वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा उसने लॉग इन कर लिया। नाउ दैट विल लीड मी टू समथिंग जो कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। ओके, सो दीज आर माय, जिसको बोलते हैं ना सिंपल फोरेंसिक टेस्ट, और उसमें वो अब्सर्डिटी और इम्पॉसिबिलिटी के थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जब अब्सर्डिटी थोड़ी सी जिसको बोलते हैं ना, मतलब इम्पॉसिबिलिटी ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता और अब्सर्डिटी हो सकता है, बट इट इज वेरी वियर्ड दैट ऑल ऑफ द जिसको बोलते हैं ना थिंग्स विल फॉल इन प्लेस और फिर जो है वो हमारा काम चल रहा है। सो दीज आर सिंपल टेस्ट। सो सिंपल टेस्ट सो मेनी टाइम्स दे हेल्प अस टू फाइंड फ्रॉड्स जो जनरली डेटा एनालिसिस करके इवन फोरेंसिक्स परफॉर्म करके हम चीजों को नहीं पता चलता है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है जितने भी फ्रॉडस्टर होते हैं फोरेंसिक ऑडिट के केस में, थिंक अबाउट वी आर लाइक इन अ कैट एंड माउस गेम, जहां पे क्या होता है एक पर्सन अगर थोड़ा सा आगे चला गया तो दूसरे वाला पर्सन जो है वो उसको सीख लेता है और फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और तरीके से उसको करने की कोशिश करता है। सो सिमिलरली जब आप डेटा एनालिसिस की बात करोगे, सो यस पीपल कैन डॉज डेटा एनालिसिस, द रीजन इज दैट उनको भी वो स्किल्स मालूम है। डेटा एनालिसिस करते समय कोई भी डेटा एनालिसिस करने वाला पर्सन क्या क्या चीजें देखेगा और उसको वो किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। सो दे विल ट्राई टू पंच इन द डेटा जो सामने वाले पर्सन को नहीं पता लगेगा, ओके, ये जेन्युइन है या फेक है, वहां पे हम परेशानी में आ जाते हैं। बट जो सिंपल टेस्ट होते हैं, सिंपल टेस्ट उन सब चीजों को वो कॉमन सेंस से जब आप ऑब्जर्व करोगे, चेक करोगे, तो यू विल फाइंड समथिंग जो आपको बताएगा कि हाँ ये चीजें जो है वो गड़बड़ क्रिएट करती है। सो दीज आर माय सिंपल टेस्ट जो हम लोग वो कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रॉड। सो फ्रॉड की डेफिनेशन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्ट्स में जो है वो डिफाइन की गई हुई है। सो दिस इज फ्रॉम वन डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, an act of intentional deception or dishonesty perpetrated by one or more individuals generally for the financial gain। इसका मतलब क्या है? हम लोग जानबूझ के किसी को धोखा दे रहे हैं, एक या एक से ज्यादा बंदे भी दे रहे हैं, किसके लिए? जनरली फॉर द फाइनेंशियल गेन। नाउ टर्म इज यूज्ड जनरली। कभी कभी ऐसा होता है फाइनेंशियली की बजाय अदरवाइज भी हम लोग किसी को इंजरी दे सकते हैं, जैसे उसको इमोशनल हम लोग एक ट्रॉमा से गुजार रहे हैं, हम उसके साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो भी फ्रॉड की डेफिनेशन में आ रहा है।
So now courts have different views on this topic, so that is the reason ये थोड़ा सा tricky मामला रहता है, but generally all of these things happen for जिसको बोलते हैं financial gain के लिए, वो person जो है वो चीज कर रहा है. Okay, so now there are different theories जो वो क्या करती हैं, determine करती हैं अभी अगर कुछ aspects हमारे पास हैं तो वो aspects जो हैं वो कैसे determine करेंगे कि यहाँ पे fraud होने के जो हैं वो chances रहते हैं. So one of such theories is very famous theory is fraud triangle. Now what is this fraud triangle? Fraud triangle में हमारे पास हम क्या करते हैं? I'll just narrate a story. Otherwise it becomes very interactive thing जब हम लोग क्लास में करते हैं. तो अभी तो क्या है? अभी जैसे हम लोग ये बात करें, एक बच्चा है, छोटा बच्चा. ये मेरी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है. एक छोटे बच्चे को उसकी अराउंड 10-12 साल का बच्चा है, उसको उसकी मम्मा ने भेजा कि बेटा बाजार से जाके चावल लेके आओ. 80 रुपीज केजी के चावल आएंगे, 1 केजी चावल ले आई, 100 रुपीज का नोट ले जाओ और 20 रुपीज और इज योर पॉकेट मनी. उसकी डेली पॉकेट मनी 20 रुपीज की होती है. अब 20 रुपीज की पॉकेट मनी है उसकी, 80 रुपीज हुए तो वो बाजार गया. तो अभी हुआ क्या, वहां पे जाके उसने एक बिस्किट का पैकेट देखा. बिस्किट का पैकेट अभी पीछे बड़ा पॉपुलर होता, पोटाटा करके एक बिस्किट आए थे, तो वो पोटाटा का पैकेट था. वो उसके एक फ्रेंड ने उसको एक स्लाइस जो था एक बिस्किट उसको टेस्ट करवाया था और उसको बड़ा अच्छा लगा था. अब वो उसका मन है अभी मैंने ये बिस्किट खाना है. तो उन्हें बोला उसको भी ये कितने का है, शॉपकीपर कहता है ये 25 रुपीज का है. अब बच्चे के मन में एक चीज आई भी, यार ये तो क्या उसको बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ अभी चावल घर पे तो कोई बे तो करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 75 रुपीज के चावल डलवा लेता हूँ और 25 रुपीज का मैं बिस्किट जो है वो ले लेता हूँ पैकेट इसका. अब उसके मन में आया भी मैं 5 रुपए का जो है धोखा कर रहा हूँ. अब उसको ऐसा लग रहा है मैं घर पे जाके मम्मा को बोलूंगा, हो सकता है मुझे मना किया जाए तो मेरे को ना मिले. अभी वो क्या करता है, वो 75 रुपीज की चावल लेके जाता है क्योंकि घर पे जाके किसी ने इसको बे तो करना नहीं है. पर एट द सेम टाइम वो क्या करता है, अपने मन में सोच रहा है मैं क्या करूंगा आज ना, घर पे जाके चावल नहीं खाऊंगा, मैं बिस्किट खाऊंगा तो मैं चावल नहीं खाऊंगा, ताकि मैंने जो 5 रुपए के कम लिए चावल वो मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा. अब क्वेश्चन आता है भी क्या उस बच्चे ने फ्रॉड किया कि नहीं किया. So now, so we make it interactive. मैं बच्चों से पूछता भी, यहाँ पे अभी हम लोग पूछ नहीं सकते. बट अभी क्या होता क्या है, उस बच्चे ने ये फ्रॉड ट्रायंगल के 3 एस्पेक्ट्स को जस्टिफाई करवा दिया. और कोई भी जब एनालिसिस करने वाला बंदा उसको देखेगा तो उसको लगेगा भी हाँ ये फ्रॉड हो सकता है. और सिमिलर वे में ये ट्रांजेक्शंस जैसे हम लोग कोई देखते हैं तो 3 तरह के एस्पेक्ट होते हैं. एक एस्पेक्ट होता है प्रेशर. सो प्रेशर क्या हो सकता है, फाइनेंशियल या इमोशनल प्रेशर है जो मुझे फ्रॉड करने के लिए कर रहा है. अब यहाँ पे क्या करता है, उसको टेस्ट लगा था, उसका मन कर रहा था बड़ा प्रेवलेंट तरीके से भी मेरे को क्या करना है. ऐसे ही प्रेशर होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं. अभी लोगों को होता है मुझे उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज आर ऑल माय प्रेशर जो बंदे के होते हैं. अपॉर्चुनिटी जब भी किसी को पैसा खर्चने का मौका मिलता है, तो उसके पास मौका था, क्या मौका था, अभी उसको 100 रुपीज दिए गए, वो उसने स्पेंड करके आने थे 80 ऑन राइस एंड 20 पॉकेट मनी के लिए. अब वो जब स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी उसको मिली तो उसमें से एक चीज जो है वो उसकी क्या हो गई, ऐड हो गई. वो क्या ऐड हो गई, वो उस पर्सन ने उसमें से निकाल दिया. सो दैट बिकम्स माय 5 रुपए निकाल लिए. सो दैट बिकम्स माय अपॉर्चुनिटी, में मुझे पैसा खर्चने की मौका जो है वो दिया गया था. सिमिलरली अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की एक्सप्लेनेशन होती है. व्हेनेवर यू हैव फंड्स एट योर डिस्पोजल, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी. ओके, सो नाउ दैट अनदर एस्पेक्ट इज रैशनलाइजेशन. जब बंदा जस्टिफाई करवाने की कोशिश करता है, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा. सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. और यहाँ पे बच्चे क्या सोच रहा था, मैं घर जाके चावल नहीं खाऊंगा. सो ही इज प्रोवाइडिंग रैशनलाइजेशन. वो अपनी रैशनलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई फ्रॉड या कोई गलती नहीं कर रहा और मेरे लिए क्या है, ये मेरी रैशनलाइजेशन बन जाती है. सो ये 3 कंपोनेंट जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो जितने भी लोग हैं वो समझते हैं भी यहाँ पे फ्रॉड की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है. ओके, सो नेसेसरीली अकेले 3 कंपोनेंट्स नहीं होती, बड़ी सारी चीजें और भी होती हैं, बट स्टिल ये फ्रॉड ट्रायंगल की जो थियरी है वो ये 3 लेती है. इसके बाद में हमारे पास ना 2-3 थियरीज और होती हैं, वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं करी, ब्रीफली बता देता हूँ. एक होती है फ्रॉड डायमंड. डायमंड में एक एस्पेक्ट और ऐड कर दिया जाता है जिसमें वो पर्सन को बोलता है भी क्या इस बंदे की कैपेबिलिटी है या नहीं है. ओके, अगर इसकी कैपेबिलिटी है तो ही वो क्या कर सकता है, तो ये पर्सन जो है वो क्या उसको बोलते हैं, फ्रॉड कर सकता है. सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो यहाँ पे डाला गया, फ्रॉड ट्रायंगल के ऐड किया गया. एक फ्रॉड पेंटागन बना. पेंटागन में कैपेबिलिटी की तरह का एक और बनाया था, उसको कॉम्पिटेंस बोल देते थे. कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी इज द सिमिलर थिंग. वे उस बंदे की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए वो फ्रॉड करने की. कभी कभी ऐसा होता है उस पर्सन की कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास
उसके ऊपर प्रेशर है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास रैशनलाइजेशन भी है, पर वो पर्सन की कैपेबिलिटी नहीं है वो उस लेवल का फ्रॉड जो है वो कमिट कर पाए, देन जो एक एस्पेक्ट फ्रॉड पेंटागन में ऐड किया गया, वो ऐड किया गया, उसको बोलते हैं एरोगेंस। वो पर्सन अपने आप को सुपीरियर समझता है सब लोगों से। अगर कोई ऐसा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में है जो बाकी लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझता है, सो वो पर्सन की फ्रॉड करने की चांसेस जो है वो बड़े ब्राइट रहते हैं। ओके, सो दैट इज माय फ्रॉड पेंटागन। सो इस तरह की अलग अलग थ्योरीज होती है। एक थ्योरी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, उसको बोलते हैं फ्रॉड सर्कल। वो क्या होता है, फ्रॉड सर्कल वाला बोलता है, बड़ी सिंपल सी थ्योरी, वो कहता है जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व है ना, वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस तो है ही है। ओके, सो फ्रॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह पे फ्रॉड हो सकता है। सो वी डोंट नीड एनी ट्रायंगल और पेंटागन और दीस काइंड ऑफ थिंग्स। जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, समझ लो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। सो दीज आर डिफरेंट थियरीज जो हमें बताती हैं भी अगर मुझे फ्रॉड चेक करना है, भी यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो, अगर ये एलिमेंट्स हैं तो दैट मींस फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो बहुत ब्राइट है। ओके जी, नाउ अभी क्या है हमारा जो ये जो ACFE है, ACFE बेसिकली उन्होंने हमें एक फ्रॉड ट्री दिया है। इसमें इसने क्या किया है, फ्रॉड्स को 49 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सो जो ब्रॉड कैटेगरीज है हमारी, जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो ब्रॉड कैटेगरीज इन्होंने 3 बनाई। एक करप्शन बनाई, एक एसेट मिसएप्रोप्रिएशन बनाई, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड बना दिया। अभी जो ये करप्शन की कैटेगरी में फर्दर इन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्राइबरी, इलीगल ग्रेचुइटीज और इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन। तो इसमें ना बेसिकली अलग अलग इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे तो हम लोग ये ले सकते हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया, मैं किसी ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे मुझे कोई परचेज ऑर्डर अप्रूव करना है, और मेरे कोई नॉन सर्कल में से वो बंदा वहां पे टेंडर सबमिट कर रहा है, सो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सो दिस इज काइंड ऑफ अ करप्शन सिनेरियो। ब्राइबरी, जहां पे क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है, अब मुझे पैसे दो। इलीगल ग्रेचुइटीज के केस में बंदा डिमांड तो नहीं कर रहा, पर उसको फिर जो है वो दिए जाते हैं, बेनिफिट्स खुद ब खुद दिए जाते हैं। और इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन के केस में द पर्सन इज वेरी फर्म दैट आई विल नॉट परफॉर्म दिस टास्क अनलेस सम बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू मी। सो दिस वे हम लोग इन सब चीजों को कैटेगराइज कर लेते हैं, और उसकी कैटेगरीज जो इन लोगों ने बनाई होती है। सो ऐसे ही एसेट मिसएप्रोप्रिएशन कैटेगरी है। So asset misappropriation category में we have like 2 main categories, cash and other assets. So cash के केस में then again उसने 3 अलग अलग categories बना ली हमारी, theft of cash on hand, theft of cash receipts and fraudulent disbursement. Now difference क्या होता है, cash on hand it's like directly cash लेके कोई जा रहा है, cash receipts that means जब भी किसी पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है कैश कलेक्ट करने की, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी ना, जो बिल बनाया उसने ₹1,00,000 का कस्टमर को दिया और 75,000 का सिस्टम में डाला, सो उसने कुछ पोर्शन अपने पास ले लिया, दैट इज थेफ्ट ऑफ कैश रिसीट्स कैटेगरी। और उसको हम लोग जैसे इसको स्किमिंग बोल देते हैं। स्किमिंग का मतलब कुछ पोर्शन उसने डाला और मलाई ऊपर की थोड़ी सी जो है वो ले गया। सेल्स में से लेके जा सकता है, रिसीवेबल में से लेके जा सकती है, रिफंड देते समय अगर हम लोग लेके जाना चाहे तो वो उसको लेके जा सकते हैं। तो दैट इज माय थेफ्ट ऑफ कैश रिसीट कैटेगरी। और इसमें फिर ऐसे अंडर रिपोर्टिंग, राइट ऑफ स्कीम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी स्कीम्स जो थी वो डली हुई। एंड देन वन इज लाइक कैश लार्जनी, भी रिसीट्स में से पैसे डाले उसने गुल्लक में और पैसे निकाल के ले गया। थेफ्ट ऑफ कैश इन हैंड का मतलब है उसका रिसीट्स के साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता। जनरली हमारे पास कहीं पे भी कैश पड़ा हो सकता है और वहां से लेके जा सकता है। और थेफ्ट ऑफ कैश रिसीट्स के अंदर कैश लार्जनी का मतलब है रिसीट्स उसने बुक तो करी सिस्टम में, बट क्या हुआ, उसको चोरी करके ले गया वहां से। और चोरी करने के लिए वो अलग अलग मेथड्स भी यूज करता है, जैसे उसने ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दी, मॉडिफाई कर दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल all come under this picture. Okay, so then we have the fraudulent disbursement in the cash category. That means एक तो रिसीट के टाइम पे एम्बेजलमेंट हो सकती है, एक है जब हम लोग डिसबर्स कर रहे हैं। सो जब हम लोग डिसबर्स कर रहे हैं तो हमारी कैटेगरीज उसने अलग अलग बना दी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो शेल कंपनीज के बिल कंपनी को दे दिए। हम लोग अगर वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं, उसमें से कुछ एम्प्लॉइज हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो मैंने सिर्फ कागज में क्या किया, टोटल हमारे पास 1000 एम्प्लॉइज को पेमेंट हो रही है, उसमें से 50 एम्प्लॉइज हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, पर उनको मैंने अपने लिए रखा हुआ है। भी मैं अपने ओनर को या ऑर्गेनाइजेशन में नोट कर लेता हूँ भी मेरे पास 950 प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और 50 मैंने अपनी तरफ से ऐड करके उसको 1000 एम्प्लॉइज बनाए हुए हैं, तो मेरे घोस्ट एम्प्लॉइज कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट हो जाती है। अभी मैंने उसको पेमेंट तो नहीं करी, बट मैंने किसी का नाम डाल के और उसकी पेमेंट जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। तो सिमिलरली ऐसे करके चेक टेम्परिंग एंड एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट स्कीम्स। एक्सपेंस रीइंबर्समेंट आप लोग बड़े अच्छे से आपको मालूम है,
जब भी कोई बंदा, एंड देन दिस इज द कैटेगरी जिसमें नंबर ऑफ फ्रॉड सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज छोटी अमाउंट होती है ना। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रैवल के लिए जा रहा है, किसी को कोई ऑफिस सेटअप करने के लिए, होम सेटअप के लिए कोई आपको अलाउंस मिल रहा है, तो उस अलाउंस में क्या होता है, मोस्टली जो बिल होते हैं वो फेक बिल सबमिट किया जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली उस बंदे ने एक्सपेंडिचर बिल्कुल 1 रुपए का भी नहीं किया होता और फिर भी वो बिल की सबमिशन कर देता है। तो दे ऑल अंडर कम द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड, fraudulent disbursement. Okay, so similarly we have this category called inventory and all other assets. So inventory and all other assets में हमारे पास एक होता है misuse और एक होती है larceny. तो misuse के केस में हमारे पास सिंपल सी बात है, अभी वो एसेट जैसे कंपनी की गाड़ी है और मैं पर्सनल यूज के लिए उसको ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ, सो दैट विल बी मिसयूज। सिमिलर ऑल अदर एसेट जितने भी हैं, जिस पर्पस के लिए वो एसेट यूज किया जाना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो नहीं किया जा रहा, तो वो मेरा मिसयूज कैटेगरी में आ जाएगा। सो देन वी हैव गॉट लार्जनी, वो एसेट चोरी कर लिया जाता है। और इसमें से चोरी करने का जो सबसे एक कॉमन मेथड होता है वो ये होता है दैट द पर्सन उस एसेट को किसी न किसी तरीके से स्क्रैप बना देते हैं, अभी दैट अब ये खराब हो गया। और जनरली जैसे टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो बिकने वाला, आपको मालूम है ये बिकेगा नहीं मार्केट में, ये स्क्रैप में जाएगा, बट स्टिल इट इज वर्किंग। आप क्या कोशिश करते हो, वो एम्प्लॉयज की कोशिश ये होती है उस एसेट की कोई भी पार्ट को जानबूझ के खराब कर देना, और अगर कोई पर्सन सर्विस डेस्क वाला आया और उसकी चेकिंग कर रहा है तो उसको भी साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और दे विल इशू एन रिपोर्ट भी दैट नाउ दिस इज नो मोर यूजेबल। इसकी रिप्लेसमेंट, इसकी रिपेयर की बजाय रिप्लेसमेंट ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कंपनी के लिए। सो नाउ दैट थिंग विल गो इन स्क्रैप। जब वो स्क्रैप में जाएगी तो वो स्क्रैप वेंडर के साथ उनका एक टाई अप होता है। जब भी वो स्क्रैप वेंडर के पहुंचती है, जो जितनी वैल्यू की वो चीज सेल हो जाती है, या फिर वो पर्सन अपने पर्सनल घर पे यूज के लिए उसको ले जाता है उस स्क्रैप वेंडर के पास, उसको कुछ अमाउंट किकबैक दी जाती है वेंडर को। कभी कभी वो होता है वो 50-50 का शेयर होता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे हैव, और अलग अलग कैटेगरी जो है वो उनके पास इस चीज के लिए बैठे रहती है। सो देन वी हैव दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड जो है वो दीज आर लाइक, हम लोगों को ये सारी चीजें डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कलर करते हैं कोई ना कोई पर्सन, और फिर वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स दे मे रेंज फ्रॉम थिंग्स लाइक, हम लोग जैसे अभी सत्यम का केस था, सो सत्यम के केस में उन लोगों ने कैश बैंक बैलेंसेस को इन्फ्लेट किया हुआ था। सो नाउ दैट विल कम अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड कैटेगरी। ओके, सत्यम के केस में वैसे सारी चीजें थी। अगर हम लोग फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स की बात करें तो उसमें घोस्ट एम्प्लॉयज थे। सो देयर वर सो मेनी एम्प्लॉयज जो सत्यम के एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन लोगों ने वो चीजें डाली हुई थी। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड में हम लोग ये भी कर सकते हैं, अभी आपने क्या किया, आपने अपनी सेल्स को ज्यादा दिखाया, एक्चुअल में जितनी सेल थी उससे काफी ज्यादा दिखाया, तो वो भी सत्यम में हुआ था। उन्होंने अपनी सेल्स जो थी वो इन्फ्लेट करी हुई थी, एंड सो दे विल ऑल कम अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड कैटेगरी। सो ऐसे करके फ्रॉड ट्री में उन्होंने 49 कैटेगरीज बनाई है। अभी आप इसमें कैसे कैसे डाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कैटेगरीज बनाने का फायदा क्या था। कैटेगरीज बनाने का फायदा ये होता है विदैट अगर मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स, टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, वो मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। चाहे एक चीज जो समझने वाली है वो ये बात है दैट फोरेंसिक के केस में, फोरेंसिक ऑडिट के केस में हमें इट इज नॉट पॉसिबल भी मैं सेम टेक्निक्स हर जगह पे अप्लाई करूं, क्योंकि मैंने बताया ना दिस इज कैट एंड माउस काइंड ऑफ अ गेम, जहां पे क्या होता क्या है, जहां पे प्रॉब्लम ये आती है भी फ्रॉडस्टर नेक्स्ट टाइम नई प्लानिंग लेके आएगा। ओके, बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, जो टेक्निक्स और ट्रिक्स होते हैं वो हमें काम में आ जाते हैं। सो फॉर द इनिशियल स्टेज और एटसेट्रा हम लोग उन चीजों की कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो जब मुझे कैटेगरीज मालूम रहती हैं तो उस कैटेगरी के लिए कौन सी टेक्निक से मैं जो है वो फ्रॉड पकड़ सकता हूँ, वो हमारे लिए आसान हो जाता है पकड़ना। सो दैट इज द रीजन मैं उसको कैटेगराइज करके समझता हूँ उन चीजों को, और फिर उसको आगे अप्लाई करने की जो है वो कोशिश करता रहता हूँ। ओके, राइट जी। सो अच्छा, ये ना नाउ दिस इज, अगर मैं बात करूं ये कोई चीजें जैसे इन्होंने फ्रॉड ट्री बनाया या ये कैटेगरीज डिफाइन करी हैं या फ्रॉड अभी होना शुरू हुए हैं, सो दिस इज लाइक एज ओल्ड थिंग, फ्रॉड युगों से चल रहे हैं। और ऐसे ये जो टेक्निक्स हैं फोरेंसिक की, ये हमारे पुरानी कौटिल्य में भी मेंशन करी हुई हैं, और अलग अलग कैटेगरीज थी। जैसे अभी हमने फ्रॉड ट्री में देखा था ना, तो ऐसी चीजें जैसे द अमाउंट दैट इज टू बी पेड इज नॉट पेड, अगर मैंने किसी को पैसे देने थे तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए। अमाउंट दैट इज लिटिल पेड आउट इज मेड एज मोर, मैंने अगर किसी बंदे को अगर जैसे सैलरी दी किसी पर्सन को 10,000 रुपीज की, और किताबों में मैंने उसको 15,000 रुपए की नोट कर लिया। सो ना दीज आर द थिंग्स जो पहले हो भी रही थी, और इसके बारे में रेफरेंसेस जो है हमारे जितने भी जो ग्रंथ हैं, या जैसे ये अर्थशास्त्र था हमारा कौटिल्य का, उसमें भी ये सब चीजें मेंशन करी हुई थी।
द अमाउंट दैट इज पेड टू वन इज शोन एज पेड टू अनदर। इसको हम लोग टीमिंग एंड लेडिंग बोल देते हैं नाउ डेज, आज की टर्म में। मैंने पैसे किसी और को दिए, उसके नाम किसी और का चढ़ा दिया, तो इस तरह की चीजें जो है वो देख सकते हैं। नॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर विच द प्राइस हैज बीन पेड। मैंने किसी वेंडर को पेमेंट दे दी, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट कैटेगरी में आ जाएगा। वेंडर को पेमेंट दे दी बट गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई, चाहे वो शेल कंपनी बना के मैंने काम किया, चाहे कैसे भी काम किया। सो दीज आर द थिंग्स। देन रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई वैल्यू विद दोज ऑफ लो वैल्यू। हाँ, ये भी एक बड़ा ट्रिक सी बात होती है। जैसे अभी मैंने स्क्रैप की बात करी ना, व्हेनेवर यू गो टू द माइनिंग इंडस्ट्रीज, सो माइनिंग इंडस्ट्री में इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक टू डिफरेंशिएट टू थिंग्स। वहां पे उनके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, बट स्टिल जो माइनर होते हैं, अगर उनको समझ हो, वो किसी न किसी तरीके से उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। एंड अगेन दे हैव अ टाई अप विद द थर्ड पार्टी, जो वेंडर बाहर बैठा हुआ है, उसको वो किकबैक्स के साथ वो सेटल होते हैं उनके साथ, और अंदर से हाई वैल्यू की चीज एज लो वैल्यू जो है वो चली जाती है। सो दिस इज अगेन एन एज ओल्ड थिंग जो हमें पुराना मेंशन किया हुआ था। देन डाइवर्जेंस इन वेजेस और हेड काउंट ऑफ लेबर एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे पास कम है और मैं उसको जो है वो ज्यादा दिखा रहा हूँ, गोस्ट एम्प्लॉइज अगर जिसको हम लोग बोल देंगे। सो दीज डेट बैक, मतलब हमारी टेक्निक्स फोरेंसिक की पहले से हमारे अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी कैटेगरीज उसमें से निकाली थी। अगर अब आप वहां पे जाओगे, वहां पे भी एक बड़ी लंबी चौड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वो दी गई हुई है इसके बारे में। ओके जी। अच्छा, ये थोड़ा सा डेटा जो है वो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। जो भी मैंने बोला था, रिपोर्ट टू द नेशंस जो ACFE देते हैं, सो दे एक्चुअली एनालाइज एवरी ईयर। सो दे एनालाइज अ नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जैसे 2020 में उन्होंने 2500 केसेस उन्होंने स्टडी किए थे फ्रॉम 125 डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्रीज के उन्होंने स्टाटा लिया, सैंपल लिए और उन केसेस को एनालाइज किया। तो इनका ये 2500 केसेस में जो लॉस था, दैट वाज $3.6 बिलियन का लॉस था। ओके, सो इस रिपोर्ट में ना, यू कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट ACFE। उस वेबसाइट पे जाके आप इसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और उसमें पूरा डेटा दे रखा हुआ है। सो थ्रू एंड थ्रू आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्स है इन सब चीजों की, किस तरह के लोग ज्यादा कर रहे हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लगे मेरा मीडियन लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है, अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे हम लोग फ्रॉड, एसेट मिसअप्रोप्रिएशन में कितने % हमारे फ्रॉड हो रहे हैं, हमारी क्या उसको बोलते हैं, करप्शन में कितने वो हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड में कितने हो रहे हैं। अभी वहां पे क्या होता है, जो एसेट मिसअप्रोप्रिएशन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होते हैं बट वैल्यू वाइज वो सबसे कम है। और जो वाइस वर्सा है इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, नंबर ऑफ केसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स वो कम है, बट उसकी जो अमाउंट है, उसका जो क्वांटम है, वो हायर साइड पे रहता है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोग बड़े बड़े फ्रॉड जो है वो कर जाते हैं। ओके, जैसे सत्यम की एग्जांपल हमने ली थी, तो सत्यम में भी बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं फ्रॉड जो थे वो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड जो था वो मेजर पार्ट था उसका। ओके, अब इसमें हमारे पास कौन कौन लोग फ्रॉड कर सकते हैं, नो दैट इज समथिंग जो देखने वाली चीज होती है। जैसे अभी इसने कैटेगरी बनाई, ये जो इन्होंने 2500 केसेस स्टडी करी थी, उसके बेसिस पे इन्होंने ये डेटा में दिया था। अराउंड मेल जो है वो 72% इन लोगों ने ऑक्यूपेशनल फ्रॉड किए थे ना। दे जो भी 3 कैटेगरीज हमने फ्रॉडरी में देखी थी ना, तो दे आर आल्सो टर्म्ड एज ऑक्यूपेशनल फ्रॉड्स। ओके, सो 72% हम लोगों ने ये मेन ने जो है वो ज्यादा किया वुमेन से। ओके, एंड देन जो $150,000 का मीडियन लॉस था मेल के केस में, और फीमेल का $85,000 का मीडियन लॉस था। ओके, सो देन ओनर्स एंड एग्जीक्यूटिव जो थे वो उन्होंने 20% ऑक्यूपेशनल फ्रॉड किए, बट उनका लार्जेस्ट लॉस, दैट मीन सीनियर पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ है, नंबर ऑफ फ्रॉड्स वो कम कर रहा है पर उसकी हिट जो है वो बड़ी ज्यादा होती है और कंपनी को लॉस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो देन यू गॉट जैसे इसमें ऑपरेशंस में 15% फ्रॉड था, अकाउंटिंग में 14% थे, एग्जीक्यूटिव अपर मैनेजमेंट 12% फ्रॉड थे और 11% सेल्स वालों ने किया। तो नाउ दीज आर लाइक द कैटेगरीज जिसमें से आधे से ज्यादा इन सिर्फ 4 कैटेगरीज को अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो फ्रॉड हो गए। एंड जो अभी होटल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा था, उस इंडस्ट्री में आई फोकस्ड ऑन मेजोरिटी रेवेन्यू पे। सो रेवेन्यू को फोकस करके मैंने उसकी टोटल जितना उसका रेवेन्यू था ना, उसकी एवरेज एक साल में 10% इंक्रीज करवा दी थी। सो जस्ट कंट्रोलिंग द रेवेन्यू, नथिंग मोर देन दैट। सो नाउ दीस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब आपको अगर पता होती है तो फिर आप उसको अच्छे से ट्यून कर सकते हो, उसको फोकस कर सकते हो कि मैं किस तरह से चलूंगा। ओके, एंड देन एज वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो देन देयर इज अ कैटेगरी, फिर उसका स्टेटा दे रखा हुआ है अभी कौन कौन सी एज वाले जो लोग जो है वो फ्रॉड जो है वो कर सकते हैं। ओके जी,
नाउ अभी एक जो हमारी जो मेन डिस्कशन एक चलेगी वो चलती है रेड फ्लैग्स की। रेड फ्लैग्स, नाउ व्हाट आर दीज? देयर आर डिफरेंट इंडिकेशंस जहां से मुझे पता लगता है भी फ्रॉड हो सकता है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लैग्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं कोर्स में। वैसे और भी तरह के फ्लैग्स होते हैं। वन इज रेड फ्लैग, अनदर इज येलो एंड थर्ड इज ग्रीन। नाउ व्हाट इज रेड फ्लैग? रेड फ्लैग का मतलब दैट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी द फ्रॉड माइट बी देयर। नाउ यहाँ पे एक चीज फोकस करने वाली ये होती है, इसका मतलब है फ्रॉड हो सकता है। रेड फ्लैग के होने का जरूरी मतलब नहीं है कि फ्रॉड होगा ही होगा। सो हम लोग अलग अलग तरह के रेड फ्लैग्स को एक बार बारी बारी करके चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग। नाउ व्हाट इट सेज, दे इंक्लूड एग्रेसिव गोल्स एंड परफॉर्मेंस मेजर्स। अगर मैंने अपने एम्प्लॉइज को एग्रेसिव सेल्स टारगेट दे दिए हैं, possibility is there, this becomes a red flag that considering, जैसे आज की केस में अगर हम लोग बात करें, so during this कोविड इरा ट्रैवल कंपनी में कोई पर्सन काम कर रहा है और मैं उसको प्रीवियस ईयर के बेसिस लेके, जैसे 2019 का बेस लेके मैं 20 में उसको बोलूं आई नीड अ ग्रोथ ऑफ 20% फ्रॉम द पास्ट सेल्स, तो दे विल बिकम माय रेड फ्लैग। अब उसके केस में होगा क्या, दैट बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री डाउन गई है, ऑलमोस्ट बंद पड़ी रही है, तो उसमें ग्रोथ का तो कोई चांस है ही नहीं है। सो व्हेनेवर वी सी दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस थिंग्स जो एग्जैजरेट करके सामने वाले को, एम्प्लॉयज को बताई जाती हैं और उनको वो टारगेट मीट करने के लिए पुश किया जाता है, दे बिकम माय, द कैटेगरी विल बिकम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग। नाउ इफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर देन आई विल सस्पेक्ट यस फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, so then we have these accounting system red flags. Now what are these accounting system red flags? They refer to organization of accounting system and then their level of internal control which are in place. Take an example. मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने अभी बात करी वो अगेन सेम होटल वाली बैंक्वेट की बिल की, उसमें ईआरपी में अगर बिल मॉडिफाई करने की ऑप्शन है और उसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा, so that will become my accounting system red flag. That means intentionally उस अकाउंटिंग सिस्टम के साथ कोई भी बंदा प्ले कर सकता है एंड आई एम गिविंग द लीवरेज टू माय स्टाफ दैट वो कोई ना कोई बिल के साथ मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। सो दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम रेड फ्लैग। जनरली ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी आप ट्रांजेक्शन डाल दो तो उसके बाद में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते, उसके लिए आपको एक सेपरेट ट्रांजेक्शन डालनी पड़ती है। बट देयर आर सम, जैसे हम ईआरपीज यूज करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन की ऑप्शन भी होती है कभी कभी, बट उसकी मॉडिफिकेशन का फिर लॉग जो है वो मेंटेन किया जाता है, फिर ये ट्रांजेक्शन किसने कमिट करी थी, इस ट्रांजेक्शन में किसने चेंजेस किए थे, क्यों किए थे, तो प्रॉपर रीजंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जैसे इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करते हो, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा अपलोड कर सकते हो, बट दैट विल कम एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन। आप पुरानी वाली ट्रांजेक्शन के साथ कोई पंगा जो है वो नहीं लेके आ सकते। डिपार्टमेंट के पास हमेशा वो रिकॉर्ड रहता है, वो जो ट्रांजेक्शन आपने डाली हुई होती है। ओके, हालांकि आई कैन एक्चुअली गो इन डेप्थ इसको एक्सप्लेन करने में, बट अगेन फिर वही बात है, अभी हम लोग अगर जाएंगे तो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। ओके, आई थिंक सो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के लिए भी टाइम रख लेंगे। देन वी हैव दिस ऑपरेशनल रेड फ्लैग। व्हाट इज दिस ऑपरेशनल रेड फ्लैग? कंपनी का ऑपरेशन, बिजनेस करने का तरीका क्या है। टेक एन एग्जांपल। अभी इसकी एग्जांपल में रेलेवेंट थोड़ी पुरानी हो गई बट आपको समझ लग जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आप इशू करवाते थे, तो तब क्या होता था, जब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जाने होते थे तो आइडिया रहता था कि आपको वो पर्सन को वो सारी, जिसको बोलते हैं फॉर्म साइन भरना है, साइन करवाना है, पूरे उसके रेजिडेंस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी डिटेल्स उसको देनी होती थी। वो जाने के बाद में वेरीफाई होगी, वेरीफाई होके फिर मुझे डिजिटल सिग्नेचर इशू होगा। बट ऑपरेशन कैसे चलते थे, उसको वेरीफाई कोई नहीं करता था। द रीजन दे रिक्वायर टू मॉडिफाई दैट सेटअप, और फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग और वो सारी चीजें जो है वो फिर बाद में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी। अब इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रेड फ्लैग। ये सिंपल एग्जांपल है क्योंकि हम लोग यूज करते थे तो आपको आइडिया हो जाएगा ऑपरेशनल रेड फ्लैग क्या होता गया। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, दैट मीन्स फ्रॉड कैन बी देयर। लोगों को डीएससी जो है वो बिना प्रूफ के भी इशू हो रहे हैं। कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से मेरे नाम पे डीएससी भी इशू करवा के लेके जा सकता है और उसको मिसयूज कर सकता है।
तो सिमिलरली किसी भी कंपनी में अगर ऑपरेशनल लेवल पे इस तरह की परेशानियां हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस रेड फ्लैग. So then we have got the behavior red flag. Now what is this? They include behavior pattern of the employees. अब ये क्या होता है? जैसे टेक एन एग्जांपल, आपकी ऑफिस में या आपके जिसको बोलते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कोई भी जहाँ पे वो काम कर रहा है पर्सन, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उन बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करते हो और आपको पता लगता है भी शायद कोई फ्रॉड हो सकता है. वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर कोई पर्सन आपके पास काम कर रहा है एंड वो पूरी लाइफ जो है वो बड़ा सिंपल से तरीके से जिसको बोलते रहा है, जैसे पुराने जमाने में होता था, मेरे पास भी होता था, एक चेतक स्कूटर होता, बजाज चेतक स्कूटर होता था. अभी फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 10-12 ईयर्स वो बजाज स्कूटर पे मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपने ऑफिस में, और मेरी सैलरी जो है वो बड़ी कम सी सैलरी है, अभी 10,000 रुपये महीने की सैलरी पे मैं काम कर रहा हूँ. एंड ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे व्हाट हैपेंस, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काफी कॉस्टली कार जैसे BMW या क्या उसको बोलते हैं, इस तरह की कोई कार जो है वो मैं लेके ऑफिस पहुंच रहा हूँ. द मोमेंट मैं जब वो ऑफिस पहुंचूंगा वो कार लेके, देन जो बंदे ऑब्जर्व करने वाले होंगे वो सोचेंगे यार ये तो इसकी सैलरी तो कितनी कम सी है, तो इसके पास ये वाली कार कैसे आई. सो नाउ दैट इज कॉल्ड माय बिहेवियर रेड फ्लैग. नाउ ये जो रेड फ्लैग होते हैं मुझे हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? सो दे हेल्प मी इन एक्चुअली चेकिंग बी वेदर कुछ फ्रॉड हो सकता है. दैट मीन्स कि एम्प्लॉय कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा. सैलरी तो इसकी 10,000 है, तो ये BMW कैसे लेके आ रहा है? 10 साल से तो ये स्कूटर ही चला रहा था और 10 साल में पैसे जमा भी कर लेगा, खर्चा घर का निकालने का, BMW के लिए पैसे तो फिर भी नहीं ये इकट्ठे कर सकता. तो दे विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ बिहेवियर रेड फ्लैग्स. ओके, देन वी गॉट द स्ट्रक्चरल रेड फ्लैग्स. दिस मीन्स जो मेरा कंपनी का स्ट्रक्चर है वो ही गड़बड़ है, उसकी जो पॉलिसीज है वो ही गड़बड़ है. जितने मैंने पॉलिसी और प्रोसीजर बनाए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने कुछ ऐसे बना के रखे हुए ताकि कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की जा सके. सो दे विल बिकम अ स्ट्रक्चरल रेड फ्लैग. तो इसमें ऑपरेशंस का कोई रोल नहीं होता. इसमें इट्स लाइक भी आप अंडरस्टैंड करते हो भी कंपनी जो सेटअप की गई है वो तरीका ही ऐसा है. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंपनीज ऐसी ही बनाई जाती हैं. इवन एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, उस स्कैंडल के केस में वो जो एक नई कंपनी फॉर्म करी थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या करी थी, बेस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करती थी और उसकी ट्रेडिंग के बेसिस पे बैंक्स ने उसको लोन दिया था. ओके, तो ना जो पॉलिसी और प्रोसीजर बनाए थे, जो चीजें बनाई थी जिसके बेसिस पे वो सारे काम होते, वो स्ट्रक्चर ही गलत था. तो शेयर्स को अंडरलाइन वैल्यू रख के उसके ऊपर लोन मिला, लोन के बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करके हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे. तो वो स्ट्रक्चर ही मेरा गलत था, मेरी पॉलिसीज या प्रोसीजर किसी चीजों को लेके गलत है, तो वो मेरे स्ट्रक्चर रेड फ्लैग की कैटेगरी में जो है वो आएंगे. सो देन वी हैव पर्सनल रेड फ्लैग्स. यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज है मेरी, जो मेरे प्रोसीजर है, मैं उसको अच्छे से फॉलो नहीं करता. या मेरी पॉलिसी ऐसी है भी मैं वेरीफाई नहीं कर रहा कि बंदा जो मेरे ऑफिस में आ रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या था. अगर इस तरह की कोई चीजें मैं बिल्कुल नहीं कर रहा और किसी को भी काम पे रख रहा हूँ, सो दे विल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल रेड फ्लैग, जिससे मुझे पता लगेगा भी जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी तरह के फ्रॉड करने के कैपेबल है. हो सकता है हमने उसकी हिस्ट्री ना चेक करी हो, ये कोई सीरियल जिसको बोलते हैं ना फ्रॉडस्टर है जो बार बार करके फ्रॉड कमिट करता है. और फ्रॉडस्टर की एक बड़ी खासियत होती है, एक फ्रॉड उनका कंप्लीट होता है, वो वहां से अगर छूट जाते हैं, सजा काट के आएंगे, फिर दोबारा नेक्स्ट फ्रॉड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. इस तरह से कितने से फ्रॉड है, आप सर्च करके देखोगे. जब भी फ्रॉडस्टर जेल से बाहर आएगा, चाहे वो 10 साल लगा के आया जेल के अंदर, तो भी बाहर आते समय वो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रॉड की प्लानिंग जो है वो करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उनको एक्चुअली कुछ और आता नहीं होता. अच्छा, रेड फ्लैग्स की ना एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो आप रिलेट कर सकते हो मूवीज के साथ. अगर किसी ने मूवीज जैसे आप लोग देख रहे हो, तो मूवीज में ना एक मूवी पीछे आई थी बदमाश कंपनी. तो उसमें क्या था, एक बड़ी सिंपल सी चीज उन्होंने करी थी, वो ये करी थी, बाहर से शूज, टेक एन एग्जांपल, 1000 रुपीज के शूज आते थे, उनको पता लगा भी 1000 रुपीज के शूज के ऊपर 2000 रुपीज जो है वो कस्टम ड्यूटी लगती है. अब वो कस्टम ड्यूटी को इवेड करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक बनाई. वो क्या किया, उन्होंने वहां से जो मैन्युफैक्चरर था उस बंदे को बोला, लेफ्ट शू, बाएं पैर का जूता एक असाइनमेंट में भेजो. उसकी टेक एन एग्जांपल, उसको मुंबई पोर्ट में बुला लिया और दूसरे पैर का जूता किसी और पोर्ट पे उन्होंने बुला लिया, राइट पैर का, दाएं पैर का जूता. अब जब हुआ क्या, जब वो वहां पे कस्टम पे गए, उसको छुड़ाना था, अब कस्टम ड्यूटी 2000 रुपए पे करनी थी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब चेकिंग करी तो उन्होंने देखा अरे ये तो शूज सारे के सारे लेफ्ट है. तो थोड़ा सा ड्रामेटिकली उन्होंने प्रेजेंट किया था. वो उसको बोलता भी कहता मैं तो ये शूज रख लूंगा तो मेरे को तो नुकसान और हो जाएगा. एक तो मैंने वहां पे जो पेमेंट करी वो तो मेरी गई खराब हुई, अब मैं आपको कस्टम ड्यूटी को पे करूं, मैं नहीं ले रहा,
मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा गुड्स। तो वो इस तरह की गुड्स को फिर वो क्या करते हैं, दोनों पोर्ट्स पे उन्होंने ये काम किया, फिर बाद में ऑक्शन पे देते हैं, जैसे स्क्रैप सेल करते हैं। तो वो जब वो ऑक्शन पे सेल होने के लिए आए भी, अकेले बाएं पैर के जूते या दाएं पैर के जूते जब सेल होने के लिए आए, तो वो खुद ही वहां पे ऑक्शन पे गए, उन्होंने बोली लगाई और वो चीजें खरीद ली। फिर उन दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अब उसको सेल करना शुरू करने लगे। अब हुआ क्या, उन्होंने 2000 रुपए की ड्यूटी बचाई, प्रोबेबली 500 रुपया उन्होंने और पे किया होगा उसकी कॉस्ट का, 1500 रुपए का उनको घर पे शूज मिल रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर मार्केट में कोई 3500 का बेच रहा है, बिकॉज उसको 3000 की कॉस्ट पड़ी थी घर पे, अब वो उसको बेचना शुरू हो गए अराउंड 2500 रुपीज पे। जब वो 2500 रुपीज पे उसको बेचना शुरू हो गए, तो वो प्रॉफिट 1000 रुपीज का प्रॉफिट बना रहे हैं, जबकि दूसरे वाला बंदा 3500 पे बेच के 500 का प्रॉफिट बना रहा है। अब जब उन्होंने चेक किया, क्योंकि सब लोग देखेंगे भी इससे कम पे तो जूता मिलता ही नहीं है, तो जब उन्होंने बाकी के मैन्युफैक्चरर्स ने उसको चेक किया, तो उनके लिए एक रेड फ्लैग बन गया। क्या बन गया? रेड फ्लैग। भी बिलो 3000 तो किसी को बेचना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 3000 तो मेरी कॉस्ट आती है यहाँ पे। सो फिर उन्होंने सोचा भी शायद डुप्लीकेट होंगे, फिर उन्होंने चेक करवाया, पर डुप्लीकेट भी नहीं थे भी ओरिजिनल। देन फिर इवेंचुअली जब उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो बैक एंड पे जाके पता लगा भी यस, दिस इज द मोडस ऑपरेंडी, किस तरह से ये फ्रॉड जो था वो कमिट किया गया था। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज टर्म्ड एज माय रेड फ्लैग। तो इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास कुछ और फ्लैग्स होते हैं, जैसे उसको येलो फ्लैग बोल देते हैं। येलो फ्लैग क्या होता है? सॉर्ट ऑफ वार्निंग होती है। वार्निंग की बेस्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, आप लॉग इन करते हो कभी भी किसी दूसरे सिस्टम पे, अब सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली उस ट्रांजेक्शन को फ्लैग कर देता है, येलो फ्लैग, और वो आपको बोलता है भी आपने अलग सिस्टम पे जो है वो किया था, लॉगिन किया है। तो अगर आपने किया है, मेल आएगी, अगर आपने किया है तो गुड, अगर नहीं किया तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। सेकेंड तरीका क्या होता है, कुछ वो बोलेंगे भी आपने अगर ब्राउजर चेंज किया है या कोई चीज चेंज करी है, तो उस पर ओटीपी डाल दो। ओके, सो जब वो ओटीपी डालोगे, तो ओटीपी डाल के क्या होगा, क्या वेरीफाई हो जाएगा दैट द पर्सन इज द सेम पर्सन। ओके, सो इस तरह की चीजों को हम लोग बोल सकते हैं। अभी ये वार्निंग तो सिस्टम देता है, बट वहां पे फ्रॉड के चांसेस कम है। रेड फ्लैग में बहुत ज्यादा होते हैं, येलो में थोड़े कम होते हैं। इसके बाद में फिर होता है ग्रीन फ्लैग। सो ग्रीन फ्लैग क्या होता है? ग्रीन फ्लैग इज लाइक वहां पे बहुत लाइट से चांसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है जो बता सकता है भी शायद फ्रॉड हो, पर फ्रॉड के चांसेस बहुत ही मिनिमल होंगे। तो दोज आर टर्म्ड एज माय ग्रीन फ्लैग, या उसको टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ अ थिंग बोला जा सकता है। जैसे उसकी एक सिंपल एग्जांपल होती है, एक एम्प्लॉई जो है वो सारा साल काम करता रहता है, ओके, और क्या उसको बोलते हैं, छुट्टी कोई भी नहीं लेता, पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है भी क्या उसको बोलते हैं कुछ फ्रॉड हो गया है, कुछ गड़बड़ होगी, बट इट इज लाइक सिनेरियो विच इज टू गुड टू बी ट्रू। रीजन, ऐसा तो होगा ही नहीं ना, बंदा सारा साल कैसे काम करेगा, एक भी छुट्टी नहीं चाहिए उसको, है ना। सो देन वी विल इन्वेस्टिगेट दैट ट्रांजेक्शन। तो प्रायोरिटी मेरी होगी, सबसे पहले रेड फ्लैग ट्रांजेक्शन को देखूंगा, फिर मैं येलो फ्लैग ट्रांजेक्शन को देखूंगा, और फिर मैं ग्रीन फ्लैग ट्रांजेक्शन को देखूंगा। अगर मैं ऐसे देखूं भी, अगर मुझे फ्लैग्स के बेसिस पे फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए ट्रांजेक्शन को देखना है, तो ये मैं इस तरह से वन बाय वन करके जो है वो देखता रहूंगा। नाउ वी कैन एक्चुअली डिस्कस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आल्सो ओवर हियर। अभी हमारे पास एक चीज और है, मुझे अलग अलग, जैसे एंगेजमेंट एरिया, वैसे तो ये अभिषेक जी ने जैसे इंस्टीट्यूशंस बताई, तो हमारे पास अलग अलग एंगेजमेंट कैसी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के अगर केसेस हो, वहां पे फॉरेंसिक जरूरी होता है। इंश्योरेंस क्लेम्स के केस में होता है, क्रेडिट कार्ड्स के केस में, एम्प्लॉय फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के केस में, टेली मार्केटिंग फ्रॉड, चेक टेम्परिंग, एसेट मिसअप्रोप्रिएशन, सिक्योरिटी फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, बैंकरप्सी फ्रॉड। तो ये सारी जो है वो बेसिकली मेरी एंगेजमेंट एरिया एग्जाम्पल है, जहाँ पे मुझे किया जा सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड के केस में देयर आर सो मेनी डिफरेंट फ्रॉड जो क्रेडिट कार्ड में होते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की नंबर जो चोरी कर लिया जाता है जब आप सब पंच कर रहे हो। अभी तो एक बड़ी पुलिस सी एग्जांपल जिसको बोलते हैं ना, बचकाना से तरीके से किसी ने वो किया था इसको, क्या बोलोगे उसको, एक पीवीआर में, पीवीआर नहीं था, मल्टीप्लेक्स था कोई, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, तो याद भूल जाता हूँ मैं। पीवीआर नहीं था, कोई और चेन थी। तो मल्टीप्लेक्स में वहां पे क्या हुआ था, जो काउंटर होते हैं ना, फूड काउंटर, तो फूड काउंटर पे वो पर्सन क्या करता था, क्रेडिट कार्ड उसने ऊपर कैश ड्रिल के ऊपर स्ट्रेटेजिकली एक वो लगा लिया, क्या उसको बोलते हैं, कैमरा। वो कैमरे को वो क्या करता था, जैसे ही उसको आगे फर्दर स्वाइप करते लेता था उससे, तो फ्रंट की इमेज उसमें आ जाती थी, और बैक की इमेज वो क्या करता था, जिसपे सीवीवी वगैरह लिखा होता था, वो वहां पे लिखा जाता था। सो दैट वे उसने कैप्चर करना शुरू कर दिया।
So eventually वो credit cards की वो misuse करना शुरू हो गया. So these kind of things all started happening. So this becomes my engagement area example जो credit card के frauds में मैं इसको check कर सकता हूँ. Okay, I hope so. अभी ये message आने शुरू हो गए हैं. तो अगर क्वेश्चन आंसर है तो मोस्ट वेलकम. अभिषेक जी, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अभी. सर आप मेरे हिसाब से आप अभी 10 मिनट और कंटिन्यू कर ले, फिर हम लोग 10 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे सर लास्ट में. 10 मिनट में एक्चुअली कुछ ज्यादा हो जाएगा उसके लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए. मैंने इसीलिए टाइम साथ साथ में देख रहा था. ठीक है, क्योंकि फिर 10 मिनट में रैप नहीं होगा. ये एक दो क्वेश्चन को फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे सर. फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे सर. हाँ, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं. हाँ जी. फ्रेंड्स, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे जो फैकल्टी है रोहित नारंग जी ने दिया, और सबसे इम्पोर्टेंटली इन्होंने बेसिक लैंग्वेज में हमको समझाया कि कैसे फॉरेंसिक ऑडिट होती क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट करते कैसे हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट करने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. सर ने रेड फ्लैग की बात करी, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने फॉरेंसिक ऑडिट पे अपनी जब पीएचडी सबमिट करी थी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट डेटा हमारे पास नहीं थे. सो मुझे 1 से 1.5 साल लग गया इंफॉर्मेशन ट्रैक करने में, डेटा गैदर करने में. और सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल सिंपल बैलेंस शीट को देखकर और सिंपल ऑडिट रिपोर्ट को देखकर आप लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि रेड फ्लैग है या नहीं है. आपको केवल 4-5 टिप्स में देना चाहता हूँ यहाँ पर. नंबर 1, हमने जब बैलेंस शीट एनालाइज करी NACL की, तो हमने देखा कि जो उसकी सेल थी बहुत एबनॉर्मल इंक्रीज था. 11-12 में 81 करोड़ से 12-13 में 472 करोड़ हो गया. एबनॉर्मल इंक्रीज, जबकि कोई नया बिजनेस, कोई नई स्ट्रेटेजी उन्होंने स्टार्ट नहीं करी थी, फिर भी सेल उसकी 5 टाइम्स हो गई. नंबर 1. सेकंड जो हमने देखा, डाइवर्जन ऑफ फंड था. अब डाइवर्जन ऑफ फंड कितनी प्लानिंग से उन लोगों ने किया था कि जो 31 मार्च को आप बैलेंस शीट देखोगे तो सिस्टर कंसर्न को लोन दिखेगा 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए. ड्यूरिंग द ईयर हमने देखने की कोशिश करी, तो पर्टिकुलर डेट्स को फंड आउटस्टैंडिंग था 800 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ रुपीज. सो दैट वाज डाइवर्जन ऑफ फंड. 31 मार्च को वो वापस कम कर दिया था, और अगले दिन वापस से वो लोग फंड को वापस डाइवर्ट कर देते थे. अगर आप टोटल देखोगे रिसीवेबल जितने थे, तो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल जो थे 6 मंथ से ज्यादा के मोर देन 70% थे कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में, और जो सिस्टर कंसर्न को रिसीवेबल थे वो मोर देन 45-50% थे, विच इज अगेन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स. तो बहुत सारे डेटा आपको मिलते हैं अगर आप थोरोली स्कैन करते हो, स्क्रूटनाइज करते हो बैलेंस शीट को. आपको जैसे बोलते हैं ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट सपोज टू ब्लड हाउंड, पर व्हेन यू आर फॉरेंसिक ऑडिटर, जैसे सर ने बताया, यू आर सपोज टू बी ए ब्लड हाउंड. तभी आप लोग देख पाओगे. आपको शकी नजर से देखना है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. अगर आप देखोगे, डेफिनेटली वी ऑल आर वेल इक्विप्ड विद आवर नॉलेज, विद आवर विजडम. हम लोग को मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा हमको जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, डेफिनेटली मिलेगा. तो सबसे मेन इंफेसिस जो रहता है आपका, इट शुड बी ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड फ्लैग्स. जैसे सर ने बताया, रोहित नारंग सर ने, कि रेड फ्लैग्स मिलने के बाद भी इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द केसेस कि आपको वहां फ्रॉड मिले, बट देयर मे बी सम चांसेस कि व्हेन यू आइडेंटिफाई सम रेड फ्लैग, तो दैट दोज रेड फ्लैग कुड बी converted into the fraud. So that all we have to examine after going through the concerned balance sheet and the documents, right? So sir, बहुत सारे हमारे साथ हैंड रेज हो चुके हैं क्वेश्चंस के लिए, तो मैं लेना चाहूंगा हैंड रेज में से जो लोग हैं. वेब मास्टर के नाम से किसी का हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कर ले और प्लीज अपना नाम बता के क्वेश्चन पूछें. काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. Can you hear me, please? Webmaster? Okay, we are taking another. Anita Agrawal. Anita, please अपना क्वेश्चन पूछें. सर उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है. हाँ सर, नमस्कार सर. Am I audible? अनीता जी, आपकी Yes, वॉइस you're audible. प्रॉपर नहीं आ रही है, बट आप बोलें सर, कोशिश करेंगे Am समझने. I audible sir? Maybe some network problem at your end, Anita ji. Anita ji, Hello, voice am I audible sir? now audible. Sir, Now. आपने जो deliberation दिया, that was okay. 1 second sir. Sir, your deliberation was very I mean it was excellent. I got to know a lot of things sir. मेरे एक question है that forensic audit के लिए do we need to be like computer savvy, मतलब बहुत सारे जैसे hash value आपने कहा and all these sort of things. So I mean I am not so computer savvy, है ना. जो भी है थोड़ा बहुत है जो audit के लिए चाहिए होता है उतना तो है, but not much beyond that. So should I mean is it necessary for me to have this sort of knowledge or something like that? अनीता जी, ऐसा है, देखो आज की डेट में वैसे तो अगर मैं बात करूं
आप नॉर्मल ऑडिट के लिए भी जाओगे तो उसमें जितना कंप्यूटर सेवी आप होते हो उतना आपके लिए आसान हो जाता है चीजों को देखना। जैसे अभी मेरे साथ अभी क्या हुआ था, एक बार बैंक ऑडिट पे गया तो उन लोगों ने अपनी एनपीए की रिपोर्ट ही डिसेबल करी हुई थी। सो प्रोबेबली इनिशियल 4-5 डेज उनकी एनपीए की रिपोर्ट डिसेबल थी। अब क्या होगा, क्या आप अगर डेटा को एनालिसिस करना जानते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके मैंने 2-3 रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट किया, उसमें से कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूला एक्सेल में ही लगा दिए, तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे को कुछ केसेस मिल गए। जैसे टोटल वहां पे नंबर ऑफ एडवांसेस जो अकाउंट्स थे वहां पे वो 5000 प्लस थे। और अब उस इस तरह की ब्रांच में आपको फिर सैंपल तो लेना पड़ेगा। तो जितना आप कंप्यूटर सेवी होते हो उतना आपके लिए आसान रहता है। फोरेंसिक के कोर्स में बिकॉज वी आर डूइंग फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, आज की डेट में मोस्टली फाइनेंशियल जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब कंप्यूटर पे होते हैं, ठीक है। सो जितना आप कंप्यूटर सेवी होगे वो आपके लिए उतना अच्छा है। बट हाँ, एक चीज और बताता हूँ, इन सब जो टर्म्स, जैसे अभी मैंने अभी बड़ी बेसिक टर्म्स बताई थी आपको, ये हैश वैल्यू अगर आप इसको सोच रहे हो, सो दे आर वेरी बेसिक टर्म्स। इसको सुन के इंटिमिडेट मत हो। उसका रीजन ये होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डेटा एनालिसिस के लिए अगर टेक एन एग्जांपल, हम लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर आता है आइडिया यूज कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह के एप्लीकेशन टूल्स यूज कर रहे हैं, उसमें यस टूल को कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज वन एस्पेक्ट। बट एट द सेम टाइम जो आपकी अंडरस्टैंडिंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट डेवलप हुई है वो आपको बहुत हेल्प करती है। सो मुझे पहले पता होना चाहिए मैंने क्या करना है, ठीक है, वो सबसे जरूरी चीज होती है। वो विदाउट उसके अगर मैं बोलूं आपके नॉलेज के एप्लीकेशन के, वो नहीं आ पाएगी। सो कंप्यूटर को सीखना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो उसके लिए इंटिमिडेट मत होना, अभी मेरे को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता, नहीं, या मैं सेवी नहीं हूँ। सेवी देखो ऐसा होता है, जिस दिन आप सीखना शुरू नहीं, करोगे वो थोड़ा सेवी हो बहुत तो जाओगे। आता है, देखिए ऑडिट के, नहीं थोड़ा हाँ बहुत बस तो ठीक आता है। है, लेकिन लाइक आई मीन फॉर द मैम मतलब अगेन, ऑडिट के लिए मुझे पता है जितना करना है तो। नहीं नहीं वो ठीक अनीता है, जी, वो अगेन मैं हेलो। हल्का सा ऐड करना चाहूंगा जो सर उसमें कह रहे हैं ना कि अगेन फॉरेंसिक ऑडिट इज नॉट ए वर्क ऑफ ए सिंगल पर्सन, इट्स ए वर्क ऑफ ए टीम, राइट। हाँ माइट राइट बी सर। पॉसिबल कि आप, आपका जो एक्सपर्टीज है वो डॉक्यूमेंट्स बैलेंस शीट को एनालाइज करने में है, ठीक है। आपका कोई जी कलीग है जो कंप्यूटर सेवी है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, वो आपके लिए कंप्यूटर वाला पार्ट प्ले करेगा। तो राइट सर। दैट वी कैन तो वर्क। इवन राइट। इवन यहाँ ओके, पे जैसे थैंक। अभिषेक ने राइटली पॉइंट आउट किया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी होती है। अगर मेरी डेटा को एनालिसिस करना मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं असाइनमेंट में, जैसे अभी भी हम लोग करते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एक सीए फर्म है, उस सीए फर्म में 5 लोग हो, एक पर्सन की कमांड है डायरेक्ट टैक्स पे, दूसरे की इनडायरेक्ट टैक्स पे, तीसरे की ऑडिटिंग पे या अकाउंटिंग पे। तो वो क्या करेंगे, वो सब अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं और फिर उस एरिया में स्पेशलाइजेशन करते हैं। फोरेंसिक में भी सिमिलर एस्पेक्ट होता है, 4-5 लोग इकट्ठे आ सकते हैं। एक पर्सन डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए बड़ा जिसको बोलते हैं ना, उसको अच्छा लगता है, तो वो कर सकता है। दूसरा बंदा डेटा एनालिसिस कर सकता है, तीसरा बंदा रिपोर्टिंग हैंडल कर सकता है, एक लॉ वाला पर्सन हमारे साथ इन्वॉल्व होकर वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैंडल कर सकता है। और डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए इवन हम लोग आउटसाइडर भी ले सकते हैं। बट यस, एक थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो जो है वो चीजें बड़ी आराम से जो है वो होती जाती है, ठीक है ना। Thank you very ओके, much, sir. थैंक यू सर, Hope थैंक यू। Anita ji have got her reply. Thank you very much. Sir, next. यस सर, थैंक Thank यू you, सर। Anita ji. Now you can mute yourself. Sir, next question जय आचार्य को, जय आचार्य जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और जय आचार्य जी क्वेश्चन पूछे सर, उससे पहले एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में बार बार आ रहा है। क्या? क्वेश्चन बताना चाहूंगा सर आपको, हाउ टू टेक बिग असाइनमेंट्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। ये क्या उसको बोलते हैं, अभिषेक जी आप बताओगे कि मैं बताऊं? पहले आप बताओ सर, देन आई विल ऐड ऑन। नहीं, मैं तो बेसिकली क्या होता है, देखो एज सच जैसे बिग कॉर्पोरेट्स की बात करूँ ना, इन केस यू डोंट हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस ना, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे नॉर्मल एम्पैनलमेंट्स थी ना आपकी, उन एम्पैनलमेंट्स में भी देयर आर कंडीशंस जो प्री रिक्विजिट्स आपको पूरे करने पड़ते हैं। सिमिलरली फॉरेंसिक असाइनमेंट्स में भी दे विल डिमांड फॉर सच थिंग्स, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो वहां पे जाके थोड़ा सा इशू जो है आपको फेस करना पड़ेगा, अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली अगर बिग कंपनीज को आप टारगेट करना चाहते हो तो वो थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात होती है। द आइडिया इज दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर एरिया। जैसे अभी अभिषेक जी ने बताया ना, अभी आपकी वो पुलिस के साथ इन्होंने पिछली बार बताया था, भी इन्होंने अपने वहां के लोकल पुलिस के साथ टाई अप किया एंड देन वहां के केसेस जो है वो सीएस को रेफर किए जाएंगे। तो जब आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस होगा, सो देन ऑफ कोर्स जो दूसरी कंपनी है वो आपको असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व करती रहेंगी, ठीक है। जनरली वैसे देखो बिग 4 के पास जो है ना उनके फोरेंसिक का काम बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है ना। तो मोस्टली बिग 4 हो गए या टॉप जो भी 20-30 फर्म्स जो मेट्रोज में होते हैं वो ज्यादातर काम ले जाते हैं। पर यस, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आपको पिच करना है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी टेंडर वगैरह की नहीं है लंबी चौड़ी तो फिर मिल भी जाता है, कुछ ऐसे चक्कर वाली बात नहीं होती। मेरे को देखो अभी क्या, मैं आई बिलोंग टू अमृतसर सिटी, ठीक है।
तो मेरे को दिल्ली से बहुत बार कॉल्स आती हैं लोगों की, उनके साथ मैंने कभी कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता अभी मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया हुआ, बट कभी कभी ऐसे जैसे दिल्ली से मुंबई से वो फोन कॉल आएगी भी आपको ये काम जो है वो असाइन किया जाएगा, वो किसी ना किसी जगह से रेफरेंस मिली होती है भी अर्लियर ये काम इस बंदे ने किया था और वो अच्छा किया था, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा होता है भी आप छोटा काम करोगे अच्छे तरीके से करोगे तो उसकी रेफरेंस भी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। चलो अभिषेक जी अब फॉर्मली आप बताओ क्या चीजें है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो सर ने जो बताया आपको मैं उसमें एड ऑन करना चाहूंगा। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप लोकल लेवल पे बात करते हो तो पुलिस डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और बैंक्स, दो एक अच्छे सोर्स हैं जहां से आप फोरेंसिक ऑडिट का स्कोप वर्क ले सकते हो। इन स्टार्टिंग टाइम डोंट बोदर अबाउट द फीस। मे बी आज कोई आप 5 लाख का काम फोरेंसिक ऑडिट कहीं से मिल सकता है और हो सकता है आपको 50,000 मिल रहे हो सेम काम के लिए। डोंट बोदर अबाउट फीस। अगर आपको लग रहा है आपको एक्सपोजर दिला सकते हो अपने आप को, अपनी फर्म को फोरेंसिक ऑडिट का, यू शुड टेक द असाइनमेंट। लोकल बैंक्स हैं, आज बैंक्स के रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिसेज हैं, ये बहुत सारे केसेस में जहां लोन्स में फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट का असाइनमेंट देते हैं। और बहुत सारी फर्म्स ऐसी इनको असाइनमेंट मिलता है। इट नीड नॉट कि आपकी बहुत बड़ी फर्म हो, पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फर्म में 2-3 पार्टनर्स होने चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट का कोर्स करा होना चाहिए, एफसी होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा एक्सपीरियंस फर्म में होना चाहिए, डेफिनेटली आपको काम मिलता है। सेम हम लोग राजस्थान में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफिस विंग के साथ में। जोधपुर में तो आपकी अपनी एक पुलिस यूनिवर्सिटी भी बन रही है जहाँ ट्रेनिंग्स मिलेगी मेंबर को इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। तो बहुत जल्दी राजस्थान, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरी इंडिया में स्टेट लेवल पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपनी टास्क फोर्स नया डिपार्टमेंट बना रहा है, जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉर्मली वो लोग हायर करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बहुत सारे केसेस में जहां उन लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। सेबी, ईडी, सीबीआई, ये एक ऐसे केसेस हैं, या बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हम लोग को लगता है कि शायद ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस लोगों को वो लोग प्रेफर करते हैं, दैट वी अंडरस्टैंड। बड़ी फर्म्स को प्रेफर करते होंगे, एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करते हो, बट एक्सपीरियंस बनने के लिए भी हमको स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। और तो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि लोकल पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट एंड बैंक, these are the sources where you can initially approach for getting this forensic audit assignments. सर जय आचार्य जी हमारे साथ में हैं जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जय जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। तो ये फ्यूचर कंसेप्ट है, इसके लिए आपने हमें एनलाइटन किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अभी सर माय क्वेश्चन इज कि आपने बोला कि हार्ड डिस्क हम डेटा रिकवर कर सकते हैं, कैन द सेम थिंग बी डन विथ एसएसडीज, फ्लैश ड्राइव्स, और जहाँ पे बीट लॉकर या इंक्रिप्शन यूज हुआ है? देखो क्या होता है, पॉसिबिलिटी हर चीज में होती है, ठीक है। जैसे फ्लैश ड्राइव की बात कर रहे हो, इवन यूएसबी है, इवन आपके मोबाइल के जो कार्ड होते हैं ना, डेटा रिकवरी की पॉसिबिलिटी हर चीज में होती है। बट यस, जो टेन्योर होता है वो इन चीजों में कम होता रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क में तो क्या होता है, बिकॉज देर आर डिफरेंट लेयर्स जो बनती रहती हैं, तो उसमें कितने साल पुराना डेटा हम लोग रिकवर कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ दीज फ्लैश ड्राइव्स एंड अदर स्टफ, वहां पे उसका टेन्योर कम होता है, बट यस वी कैन रिकवर, और उसके भी टूल्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो ये तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे आपके पास फ्रीली अवेलेबल टूल्स होते हैं। तो आई डोंट लाइक टू नेम द टूल्स, भी ये टूल यूज करो या वो टूल यूज करो, बिकॉज वंस यू गो ऑन गूगल, बिकॉज यूनिवर्सली आप सर्च कर सकते हो, तो उसमें से कुछ टूल्स जो आप पिक करके वो इन सब चीजों को रिकवरी के लिए आप डाल सकते हो, ठीक है ना। कुछ तो क्या होता है, जैसे अभी आइडिया है हमारा, तो आइडिया में इनबिल्ट चीजें होती हैं जो काफी कुछ कवर कर जाती है, तो पर वो उसका लाइसेंस थोड़ा सा महंगा होता है। एक सिमिलर सॉफ्टवेयर है उसका नाइम करके सॉफ्टवेयर, KNIME, तो वो नाइम बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, बट उसमें कुछ ना कुछ इनबिल्ट कैपेबिलिटीज इस तरह की भी होती है, अभी आपकी डेटा रिकवरी और वो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना, वो सारी चीजें जो है वो इसमें कवर की जा सकती है। Right sir, very nicely explained and replied, thank you very much sir. Sir, another our queryist is Rohan Bagda ji. Rohan ji आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाय रोहन जी आप अपना मुझे क्वेश्चन पूछिए। लगता है शायद रोहन जी को ऑलरेडी रिप्लाई मिल चुका होगा क्वेश्चन का, इसलिए नहीं रोहन जी, अच्छा वो म्यूट क्या है अभी तो उनका। रोहन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर ले और क्वेश्चन पूछें प्लीज। ये तो एक क्वेश्चन है इसमें चैट में नीचे वाला मेरे को है, ये भी थोड़े Yes, sir. मैसेज आ रहे हैं। ये देयर आर लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर फोरेंसिक ऑडिट, बट प्रैक्टिकली देयर आर लॉट ऑफ यूसेज ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर। सी हार्डवेयर इट्स नॉट, मतलब कुछ भी ऐसा स्पेशल आपको हार्डवेयर की जरूरत नहीं रहती। इट डिपेंड ऑन भी उस सॉफ्टवेयर की, जो जैसे टेक एन एग्जांपल, आप आइडिया ले रहे हो, तो आइडिया को इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस आइडिया वाले ने आपको बताई हुई है, तो वो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस तो आप वहीं से ले सकते हो। तो कोई भी टूल, जैसे आपको अगर टूल मालूम है, बिकॉज यू आर राइटिंग दैट, आप सॉफ्टवेयर के बारे में आप अवेलेबल है आपकी गाइडेंस,
तो जो भी टूल आपको लगता है ये टूल अच्छा है मेरे को यूज करने के लिए, तो उसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। तो अगर उसने मिनिमम रैम लिखी हुई है 4 GB की, तो आज की डेट में 8 GB का मोस्टली सबके पास वो होती है, तो आप उसको अपग्रेड कर लो थोड़ा सा, अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो जनरली वैसे तो क्या होता है, जो आपके अभी आज की डेट में हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ना, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एसएमईज डेटा एनालिसिस के लिए, जो डी है, जो मेरे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो मेरे लैपटॉप यूज करता हूँ ना, i5 कोर i5 यूज कर रहा हूँ, इवन कोर i5 भी यूज कर रहा हूँ, तो वो अच्छे से काम करते हैं। सो आई बीन यूजिंग फॉर कोर i5 प्रॉब्ली पिछले 12-15 साल से, जब कोर i5 यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को अपग्रेड करने की जरूरत अभी भी नहीं लगती, क्योंकि जितना भी काम होता है वो i5 पे चल जाता है आराम से, ठीक है ना। तो रैम थोड़ी सी कभी कभी जैसे होता है भी आपको चाहिए तो रैम आप अपग्रेड कर सकते हो। वैसे जनरली अगर आप मानते हो, आपको टूल मालूम है, तो टूल में हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन दे रखी होती है, तो बेटर तरीका होता है उसको फॉलो करो, उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाला ले लो। अगर उसने 4 GB लिखा तो 8 GB ले लो, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा सॉफ्टवेयर। राइट सर, थैंक यू। रोहित जी, एक क्वेश्चन हमारे पास चैट में है, उससे पहले मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैट बॉक्स में अपना नाम और मेंबरशिप नंबर शेयर नहीं किया है, प्लीज आप लोग सीपी आवर्स के लिए अपना नाम और मेंबरशिप नंबर शेयर कर लीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीटेड एंड गिवन क्लीन रिपोर्ट बाय द ऑडिटर, आफ्टर ऑडिट मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट फोरेंसिक ऑडिटर for accountant to do forensic in the area of debtors receivables and expense reimbursement to employees, and found material fraud happened, then based on forensic report can a statutory auditor modify his audit report? नहीं, बस स्टैट्यूटरी की रिपोर्ट एक बार देने के बाद में थोड़ा मॉडिफाई करना, तो Yes. वो तो Sir, only thing that statutory auditor can withdraw his report. हाँ, That might be possible in some cases. That's what we have observed in case of this NACL also, sir. In National Sport Exchange, what we have observed that in 4 years, 4 auditors have been changed. That is again a red flag. Frequent change of the auditor. And the last and second last auditor, when he came to know about the fraud, and the moment CB and ED approached to them, including the economic offense wing of Mumbai Police approached to them, they immediately withdraw their audit report by mentioning these things. So you kindly enlighten about this also. नहीं एक्चुअली इसमें मॉडिफिकेशन का तो स्कोप होता ही नहीं है। तो Yes. मतलब अगर इससे पहले जनरली क्या होता है, अगर फोरेंसिक पहले हुआ हो तो बात अलग हो गई ना। अभी तो होने के बाद में अगर किया है, तो मैंने रिपोर्ट इशू कर दिया है, तो विड्रॉल, तो जैसे आपने बताया विड्रॉल कैन बी वन ऑप्शन, मॉडिफिकेशन तो कभी भी ऑप्शन होती नहीं है। मेरे को जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मॉडिफिकेशन कभी भी मेरी वो स्कोप में नहीं रहती इन सब चीजों की वजह से। So modification is not possible. Sir, next राहुल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राहुल जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ जी सर, मैंने ये हार्डवेयर वाला क्वेश्चन मैंने ही पूछा था। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आई एम नॉट आस्किंग फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट। मैं एक बिग फोर के ऑडिट के पार्ट, मतलब मेरे क्लाइंट साइड पे हुआ था, तो आई वाज ऑब्जर्विंग द वे द प्रोसेस दे आर डीलिंग विद द ऑडिट। तो उन्होंने फॉर सिस्टम क्लोनिंग, मोबाइल हैंड डिवाइस को क्लोन करने के लिए, उसके व्हाट्सएप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिलीटेड मैसेज, दे हैव यूज्ड सेवरल लाइन ऑफ हार्डवेयर, स्पेसिफिक हार्डवेयर। So I'm asking with that reference, is there any basic नहीं वो हार्डवेयर जो आप available of वो हार्डवेयर जैसे पता क्या होता क्या है, इट डिपेंड्स अगेन भी आपको वो जो चीजें चाहिए होती है ना, आई कैन अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो, पर उसके केस में ऐसा रहता है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हार्डवेयर, पता क्या आपको क्या लगता है, जैसे आज की डेट में ना देखो, इसको समझाने का तरीका बताता हूँ। कभी कभी हम लोग ना थोड़ा सा वो फैंसी इक्विपमेंट्स देखे हमें लगता भी है ये नई चीज है ना, पर वो होता क्या है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक चीज को मॉनिटर करने के लिए उन लोगों ने वो हार्डवेयर जो है वो ले रखा होता है, ठीक है। नाउ आज की डेट में आपके जो लैपटॉप, आपके जो कंप्यूटर होते हैं, दे आर कैपेबल इनफ, अगर उसमें वो एप्लीकेशन लोडेड है, सॉफ्टवेयर लोडेड है, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करके भी हम लोग वो सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आप अभी हार्डवेयर की बात कर रहे हो ना, तो वो हार्डवेयर क्या होता है, वो स्पेसिफिकली हम लोग उसको कैटेगराइज करके अलग कर रहे हैं, और उसमें हो क्या रहा होता है, जनरली होता है तो उसमें भी प्रोसेसिंग पावर डाल के तो एक सॉफ्टवेयर सिंपल डाला होता है, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा कम हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अभी कोशिश करते हैं अभी हम लोग अलग से हार्डवेयर रख ले उस तरह का, बट वो फिर ये होता है फिर इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब ये जो सेशन है, इस सेशन में अगर वो सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो वो फिर मिसलीड हो जाओगे, नहीं तो लोगों को लगेगा लो जी इसमें इन्वेस्टमेंट ही बड़ी ज्यादा करने की जरूरत है हमें, ठीक है। फ्रेंड्स सर, में apart from बेसिकली this, एक क्वेश्चन और है। हाँ पूछिए ये राहुल। एनडीए साइन ऑफ, जो मतलब फॉरेंसिक ऑडिट में वी आर टेकिंग एक्सेस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ पर्सन, तो उनसे कुछ एनडीए साइन ऑफ वगैरह की रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ देखो क्या है, जैसे अगर आप बोले हो ना, हम लोगों को ये जनरली अगर अपने एस्पेक्ट से बोल रहे हो तो हम लोगों का एक यूनिवर्सल सा रूल रहता है। अभी ऑडिट के केस में भी हम लोगों की तो कोई डिस्क्लोजर वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना।
जब भी हम लोग कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट लेते हैं तो हम लोग की तरफ से तो डेफिनेटली किसी भी तरह की कोई डिस्क्लोजर जो है वो नहीं रहती। तो एनडीएस यस ऑर्गेनाइजेशन साइन करवाती हैं बिफोर असाइनमेंट देने से पहले। स्कोप में, एंगेजमेंट लेटर में इन सब चीजों के बारे में मेंशन होता है, और जनरली हमारे पास वैसे भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होती ही है भी हम लोग ना करें। अब इसके अलावा अगर किसी और का, अपने ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो? Sir, as a auditor, we are taking access of personal information of certain set of उस पॉइंट ऑफ व्यू हाँ। से उसके अगेंस्ट क्या लायबिलिटी है, मतलब नहीं, आप हमारी किसी का लायबिलिटी WhatsApp ऐसी होती करते है हैं, टिल द टाइम हम लोग अपनी प्रोफेशन, देखो क्या होता है रादर फोरेंसिक में एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है, आपको एक अपना जो स्कोप है वो वेल डिफाइंड रखना चाहिए। हमने ना आज इंटरव्यूज के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करी क्योंकि फिर वो ज्यादा एक्सेस हो जाता है। इवन अगर आप किसी की इंटरव्यू भी ले रहे हो तो मेरे को उससे कुछ क्वेश्चन जो पूछने हैं, उसकी जो चीजें इकट्ठी मैंने करी हुई है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट मुझे वो लाइन क्रॉस जो है वो नहीं करनी जहां पे मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा प्रोफेशनल चीज के साथ। अगर मैं प्रोफेशनल चीज के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा तो देन ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए बढ़ जाती है, अभी वो उल्टा मेरे ऊपर केस पड़ जाता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली जैसे भी आप बोले पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास अथॉरिटी है दैट आप उसके पर्सनल डिवाइसेस को स्कैन कर सकते हो, ठीक है, वो रिटर्न में आपके पास होगी तो आप उसकी तरफ चलोगे, अगर रिटर्न में नहीं है तो नहीं करोगे। फर्स्ट थिंग, आपके पास ऐसा होना चाहिए। सेकंड, अगर मेरे पास वो भी है बट एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, मैं उसकी पर्सनल कोई भी चीज जो मेरे उस फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड नहीं है, मैं उसका कोई भी डेटा स्टोर नहीं करूंगा। जो एविडेंस में पड़ा हुआ है उसको मेरे पास पड़ा रहने दूंगा, बट सेपरेटली मैं कभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को कभी भी स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, वो मेरे अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड भी जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो भी उसकी डेटा, यस द डेटा, बिकॉज द एंटायर डिवाइस, उस डिवाइस को मेरे को सीज करना है और उसमें से कुछ पोर्शन जो एज एन एविडेंस मेरे को यूज करना है, वो मेरे पास रहेगा। बट मैं उसका पर्सनल जो चीज है वो कभी भी अलग से स्टोर करके नहीं रखूंगा किसी भी रेफरेंस के लिए। मेरे को उस फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड स्पेसिफिक जो डेटा है उसको सेग्रीगेट करके अपने पास रिकॉर्ड करके रखना है, अपने रिकॉर्ड में उसका मेंशन देना है, वो सारी चीजें करूंगा, बट पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी मैं अलग से स्टोर उसकी नहीं करके रखूंगा, ठीक है। विच विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ऑडिटर जो है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक क्वेश्चन हमारे पास चैट बॉक्स में आया अनिल माथुर साहब का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑफ बोर्ड कैन बी रिवाइज विद द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सर ने हमको इन्फॉर्म किया है सर, अनिल माथुर सर, हाँ, ठीक है। सर have informed that financial report can be revised with the approval of tribunal only under company act 2013। ये मतलब मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में नहीं था, इसको मॉडिफाई without and without the approval of tribunal it not be revised। हाँ, राइट। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आप में से और भी कोई क्वेश्चन अपना पूछना चाहे तो प्लीज अपनी बात रख सकते हैं। वी आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टुडे, आवर फॉरेंसिक एक्सपर्ट रोहित नारंग सर इज विद अस, एंड द वंडरफुल वे इज कि उन्होंने बहुत ही सीधे शब्दों में सिंपल तरीके से ऐसी चीज हमको समझाई है फॉरेंसिक, और जो सीधे हमारे दिमाग के अंदर तक गई है। अगर ये इसको बहुत ज्यादा शायद टेक्निकल कर देते तो जो हमारी अप्रोच थी समझने की फॉरेंसिक ऑडिट की बेसिक्स को, तो शायद वो अप्रोच हो नहीं पाती। तो आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, I think now query of all of us have been resolved. So once again, thank you very much for joining us. And in last again, from Jodhpur branch, I will invite Dhaval Kothari ji to give vote of thanks, please. Dhaval ji. Sir, एक क्वेश्चन आया हुआ है। Yes, sir. Sir, is there any guidelines by government to have mandatory forensic accounting by PSU or state government entities by CA Suresh Kumar? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ जिसको बोलते हैं नहीं है, पर जहाँ पे फ्रॉड एलिमेंट हो वहां पे हम लोगों को जरूरत होती है, अदरवाइज कुछ ऐसे एज सच अभी नहीं है। तो इट इज रिलेटेड टू, अभी कंपनीज एक्ट में जाओ तो हमें वो IFC और इन सब चीजों के ऊपर तो करने की जरूरत होती है, पर एज सच फोरेंसिक जहाँ पे फ्रॉड है तो करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली अलग से एज सच अभी तो नहीं है। Okay, thank you. Dhaval ji. Sir, we can all see, but can you observe? Observation is important role in audit. I am thankful to CA Rohit Narang ji for wonderful deliberations. Today's deliberation will really help to our profession, and soon it will be part of day-to-day practice. In digital platform, role of forensic auditor enhanced. I am thankful to CA Abhishek Sharma ji, Regional Council member, for giving us a wonderful faculty and
giving his precious time. I'm thankful to audience for patience hearing. Thanks to our tech team. Thank you all. Stay safe, stay healthy. Over to you, Abhishek ji. Thank you, Dhavalji. Thank you very much again for your wonderful vote of thanks. And friends, we are seeing this hospitality of Jodhpur. And believe me, if you would be able to join this conference physically at the Jodhpur, then you feel the hospitality more better by enjoying the traditional sweets and namkeens at Jodhpur. So friends, जैसे आप सब लोगों को पता है कि कोविड जो है अभी अपनी चरम सीमा पर है, ना केवल राजस्थान बल्कि पंजाब जहाँ से सर बिलोंग कर रहे हैं, ना राजस्थान ना पंजाब बल्कि पूरे देश में कोविड अपनी चरम सीमा पर है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग इस बात के गवाह हैं, पिछली बार जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन था तो हम लोग उस लॉकडाउन को एंजॉय करते थे अपने घर पर बैठकर, पर इस बार आए दिन हमको ऐसा नेगेटिव न्यूज सुनने को मिलती है अपने आसपास में, कोई साथी, कोई रिश्तेदार, कोई सीए कलीग, कोई अपना पड़ोसी, नेबर, तो वो न्यूज पूरे हमको अपने अंतरात्मा को अंदर से हिलाकर रख देती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, जान है तो जहान है, अपने आप को, अपने परिवार को बचाकर रखिए, घर में रहिए। काम कुछ कम हो सकता है पर हमारी सीए की डिग्री कोई हमसे ले नहीं सकता। बहुत जल्दी हम लोग वापस से अपने आप को रिक्यूप और ये रिगेन कर लेंगे इन सारी चीजों को। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को सेफ रखिए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कभी की जरूरी काम से आपको बाहर भी निकलना पड़ता है तो प्लीज प्रॉपर मास्क यूज कीजिए और 6 फीट की दूरी का आप इस्तेमाल कीजिए, तभी शायद हम लोग इस कोविड की आपदा से अपने आप को, अपने परिवार को बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच once again, Rohit Narang sir, for your wonderful deliberation. And we will again take your time for some other branches who are very much eager to learn about this forensic audit. And thank you very much all the participants for joining us in this program. Thank you very much. Jai Hind, Jai ICA. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Host, you can kindly close the meeting now. Thank you. Yes, sir.